رہے گی جو کہ ویکلی ہماری ہوتی ہے، اور اس میں جو ریکارڈنگ ہے پریویس سیشن کی میں نے گروپ کے اندر شیئر کر دی تھی، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ہم اگلے سیشن سے پہلے اپنے مین گروپ کے اندر شیئر کر دیں گے۔ تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا سہاد الہی صاحب سے کہ آج کے دن کے سیشن کو وہ آگے لے کے چلیں۔ جی بہت شکریہ اکرام، آپ کو آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا چلیں، ویری گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کا۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے، لیٹ می شیئر مائی اسکرین اینڈ گو اسٹارٹ۔ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ اکرام اس کو؟ جی سر، آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ کو ہوسٹ ہیں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ جی میں شیئر تو کر رہا ہوں۔ جی بالکل نظر آ رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہماری پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، آپ جو لوگ تھے ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس کو ایز اے ویبینار سیریز لے کے چلیں گے، جس میں ہم نے کچھ سیشنز پلان کیے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا فوکس ہوگا الیکٹرک موٹر سائیکل کی پرفارمنس اور رینج کی ایسٹیمیشن کے اوپر، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے لوگوں کا، خاص طور پہ رینج کے حوالے سے، کہ الیکٹرک موٹر سائیکل کی، الیکٹرک وہیکل کی رینج کتنی ہے، اور جب بیٹری ختم ہو جائے تو اس کو چارج کرنے کے لیے کیا اویلیبل ہیں چارجرز وغیرہ۔ تو وہ چارجنگ کا ہم اگلے سیشنز میں جا کے کریں گے۔ آج کا جو فوکس ہے وہ ہے کہ پرفارمنس اور رینج کو کس طرح سے ایسٹیمیٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے عمر خان جو ہے he will share some information۔ پچھلا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے بات کی تھی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈفرینٹ الیکٹرک موٹر سائیکل آرکیٹیکچر، جس میں ڈاکٹر اجمل انصاری نے، اسلم صاحب نے، others shared some information کہ کیا ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز اس وقت پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم نے ہب موٹر کا بھی ڈسکس کیا تھا، اور پھر مڈ موٹر کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو واز گڈ ڈسکشن لاسٹ ویک، اس کا بھی اکرام نے آپ کے ساتھ جو ریکارڈنگ ہے وہ شیئر کر لی تھی، so you can if you didn't get a chance to participate last week تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگین آج کا فوکس جو ہے وہ رینج اور پرفارمنس کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے جو سیشنز آئیں گے اس میں موٹرز اور اس کے کنٹرولز، اور پھر بیٹری اور چارجنگ، اکنامکس آف الیکٹرک موٹر سائیکل اونرشپ، ان چیزوں پہ، اور پھر لاسٹ کا جو ویبینار ہے اس سیریز کا اس میں سافٹ ویئر سیفٹی اور اسٹینڈرڈس کے اوپر بات کریں گے۔ میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چونکہ فوکس آج کا جو ہے وہ رینج اور پرفارمنس ایسٹیمیشن کے اوپر ہے، تو لیٹس اسٹے فوکسڈ آن دس ٹاپک فار ٹوڈے۔ کوئی کوشچنز ہیں اگر موٹرز اور بیٹری کے اسپیسیفک، تو وہ پھر ہم اگلے ویبینارز میں پھر ان کو ذرا زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ So with that, I will turn this over to Umar. And just to introduce Umar, آپ لوگ جو پہلے جن کے ساتھ تعارف نہیں ہے، Umar works in the auto industry here in the US, and has worked on the control side quite a bit, and has mashallah quite a few years of experience on the in the automotive area. So with that, Umar, I'll turn it over to you. سوری میوٹ پہ تھا میں۔ جی السلام علیکم سعد صاحب، اگر آپ مجھے 5 منٹ میں ایک فائل اپلوڈ کروں تو میں اس کے بعد پھر شروع کر سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے کوئی کوشچنز ہوں، کامنٹس ہوں while Umar is loading his file؟ جی سر، میرا ایک کوشچن ہے، نوید ظفر بات کر رہا ہوں۔ جی نوید صاحب، میرا سر کیونکہ تعلق ایویشن کے ساتھ ہے، اور کئی ٹیکنالوجیز میں ہم ایک تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ایویشن سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جیسے ویلڈنگ ہے یا اس طرح کا، تو جسٹ اٹ ہیز اکر ٹو می کہ اگر اس گروپ کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکیں کہ ایک موٹر بائک ہے
what should be its minimum weight and what can be the maximum weight. क्योंकि अगर weight में थोड़ा सा भी ज्यादा weight than required है, तो then it may be a problem for the rest of the उसकी सर्विस और परफॉर्मेंस के ऊपर कि अननेसेसरीली वेट को कैरी कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं. तो इसके ऊपर कोई अगर किसी की कोई मालूमात हो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेट ऑफ अ व्हीकल, इसका मोटर बाइक का, एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट, इसमें कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, कोई इस तरह की अगर किसी के पास मालूमात है तो दैट विल सेट अ स्टेट के हमें जो मोटर बाइक के अंदर कहाँ कहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली जब भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो लोड बेरिंग जो मेंबर्स हैं सिर्फ वो स्ट्रेंथन करने होते हैं, बाकी नहीं करने होते. और इसी तरीके से कि अगर उसको डिजाइन कैसे किया जाए कि मैक्सिमम जो उसकी एफिशिएंसी अचीव हो सके. तो इस सिलसिले में अगर कोई मालूमात रखता हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फोरम पे शेयर करें. और यही मामला ट्रू है फॉर 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स. जी सही कहा आपने नवीद साहब. वेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आज की भी जो डिस्कशन है इससे बहुत रेलेवेंट भी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड रेंज बोथ, तो वेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें जो पहले हमारे सेशंस हुए हैं इस पे, तो उसमें डॉक्टर अजमल, एंड ही कैन स्पीक टू इट मोर, has emphasized there a lot के weight reduction और weight को manage करना is one of the key things that helps with both performance and range. तो इसमें अजमल भाई, I'll ask you for a few comments, और दूसरों के अगर और कोई comments हो, and Umar, let us know when you're ready. उसमें जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या कोई वजन की इंतहा है इसमें ज़्यादा या कम. तो कम से कम मेरी नज़र से कोई ऐसी गुजरी नहीं है इस चीज़ पे कि स्टैंडर्ड्स के एतबार से कि कोई ये कहे कि गाड़ी या मोटरसाइकिल का वज़न इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम ना हो. हाँ, एक्सेल वेट के एतबार से मैक्सिमम वेट होता है ट्रक्स वगैरह के लिए, कि क्योंकि उसमें सड़कों का जो का इस्तेमाल है वो मुतासर होता है, सड़कें ज़्यादा जल्दी जो है उनको नुकसान पहुंचता है. तो एक्सेल वेट की अपर लिमिट्स होती हैं, और कमर्शियल व्हीकल जितनी भी होती हैं उनके एक्सेल वेट्स को डिफाइन किया जाता है. लेकिन मोटरसाइकिल या मोटर बाइक या पैसेंजर कार या दो पहियों या 3 पहियों गाड़ियों में उसमें मैंने ये नहीं देखा. हाँ, अलबत्ता एक दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो जो स्टेबिलिटी है उसकी अपनी एक अहमियत है. तो अब जैसे कि आप आम साइकिल जो होती है पेडल वाली साइकिल, अगर आप उसको जो है 50-60 किलोमीटर फी घंटा पे चलाने की कोशिश करें, अब इसको छोड़ दें कि कैसे चल रही है वो 50-60 किलोमीटर फी घंटा पे, तो अनस्टेबल हो जाएगी वो. तो स्टेबिलिटी का जो एक जो पहलू है आपको वो नज़र में रखना पड़ेगा. स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के एतबार से स्ट्रक्चर आपका रिजिड इतना होना चाहिए कि जो डायनेमिक लोड्स आ रहे हैं वो रेजोनेंस में ना चला जाए. तो वो अलहदा पहलू हैं सिस्टम डायनेमिक्स के एतबार से. लेकिन ये कि इसीलिए जो सिस्टम डिज़ाइन है वो उसको ड्राइव करेगा कि आपका वज़न कितना होगा, और उसमें आपको जो उसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी एनालिसिस वो भी करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर इतना रिजिड हो कि वो उसको बर्दाश्त कर सके जो आपकी टारगेट स्पीड है. जहाँ तक कि दूसरा एक पॉइंट इसी से मुतल्लिका एक और भी था, वो भी अगर डिस्कशन में आ जाए इस सूरत में, क्या ये पॉसिबल होगा मोटर बाइक के लिए कि उसमें पेडलिंग की गुंजाइश भी हो इन केस ऑफ बैटरी फेलियर. अगर आपने उसे किसी जगह पे लेके जाना है, मे नॉट बी वेरी कन्वीनियंट, बट पेडलिंग की अगर ऑप्शन भी हो, अगर लाइट वेट हो जाए, तो देन देयर इज अ मोर सेफ्टी कि आप विद इन द सिटी अगर किसी जगह पे बैटरी की वजह से कहीं पे स्टक अप हो गए तो आप पेडल करते हुए कहीं पे उसको ले जा सकते. जी हाँ, ऐसी फीचर से आजकल मोटरसाइकिल सुनी कहूँगा मैं, ईवी बाइक्स कहूँगा मैं उनको, जो हल्के वजन की हैं, उनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं. मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ. उमर, आप तैयार हो गए? जी, मैं बस अभी अपना ईवी सिम का जो मेरा वो है, इस पे आप मुझे
एक्सेस दे। अच्छा, ईवी सिम वाले पे आपको को होस्ट बना दो। जी अमर साहब, आप उमर को बना सकते हैं को होस्ट प्लीज। नबी जफर साहब, आप जो उसका कह रहे थे ना वेल्डिंग के बारे में, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसका काफ़ी अहमियत इसलिए भी है ईवी साइड पे कि उसमें वज़न करने के में काफ़ी आपके पास मौका मौजूद है। और बल्कि मैं ये इनवाइट करूँगा कि अगर स्कूल के या यूनिवर्सिटी के यहाँ पे असातिज़ा या स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो आप उससे कम्पीट करें कि कम से कम वज़न में ज़्यादा रिजिडिटी का फ्रेम आप बना सकें। हाईएस्ट स्टिफनेस, लोवेस्ट वेट कंपटीशन कर लें, उस पर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अमर साहब, आप हैं हमारे साथ? इकराम, आप हैं हमारे साथ? जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपके साथ। यार ईवी सिम पे उनको को होस्ट बना दें ताकि वो उमर शेयर कर सके फिर अपनी स्लाइड। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अमार साहब ने एंटर हुए हैं ना, तो उन्होंने वो उनके पास एक्सेस चला गया, मैं चेक कर लेता हूँ। जी जी। अच्छा अलीम साहब, आप यू हैव योर हैंड रेज्ड, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी। इसाक साहब, एक्चुअली जो है ना वो उमर साहब ज़रा बिजी थे, वो अपलोड कर रहे हैं, तो जो डिस्कशन हो रही थी तो मैं इसमें विलिंग था कि थोड़ी बहुत मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए ताकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाए। अच्छा ठीक है, जरा एक मिनट इनका जरा कर लें, उमर श्योर श्योर को होस्ट बना लें, श्योर फिर उसके बाद विल कम बैक श्योर। टू इट। आज का सेशन है ही रेंज, और इसके ऊपर वेट इज अ बिग फैक्टर, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन करते हैं। जी अमर साहब, भाई मैं को होस्ट हूँ, मैं ख्याल में कर सकता हूँ, तो मैं अभी तो नोट किया मैं कि मैं को होस्ट हूँ। मैं भी किस हूँ, मैंने कोशिश की है लेकिन मैं कर नहीं सका इनको होस्ट बनाने अच्छा, की। तो इसमें मैं ईवी कोशिश सिम की। में जो है एस्क टू अनम्यूट एक लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शंस में। जी उसमें को होस्ट बनाने अलाउड मल्टीपेन नहीं, कुछ नहीं है। जाफरी साहब का आ रहा है कि आई कैन नॉट। अमर साहब, आपको आवाज आ रही है या आपको आवाज नहीं आ रही? कह रहे I'm trying, I'm muted. अच्छा, so we just अमर साहब, we just need you to make उमर और ईवी सिम को होस्ट बना दें। कह रहे हैं he's trying. अच्छा भाई, आपको उन्होंने होस्ट बना दिया, now you should be able to make ईवी सिम को होस्ट। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ये को होस्ट कैसे बनाएंगे? ईवी सिम पे राइट क्लिक करूँ मैं? जी ईवी सिम पे राइट क्लिक करें और फिर उस पे आपको ऑप्शन होनी चाहिए को होस्ट बनाने के लिए। मेक को होस्ट, चलिए हो गया। चलिए उमर। अच्छा शुक्रिया। आप बता दीजिएगा जब आपको स्क्रीन नजर आए। नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा सही। तो जैसा कि हमारे पिछले वीक काफ़ी डिस्कशंस में हमारा ये इस पे बात हुई थी कि एक गाड़ी की कोई इलेक्ट्रिक कार है, इवन कोई भी कार है, उसकी रेंज पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जिसके असर होते हैं। और जैसे कि अभी भी जिक्र हो रहा था, लोग वेट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक ऐसा डायग्राम सा है जिसपे कुछ जो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं और जिसको ओवरकम करके जो गाड़ी को अपने आप को प्रोपेल करना होता है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो गाड़ी का इनर्शिया जो उसका अपना वजन है, उसको पहले उसको ओवरकम करना होता है, और फिर उसके अलावा उसके टायरों की फ्रिक्शन या उसके ड्राइव ट्रेन की फ्रिक्शन है, उसके अलावा उसके टायर की अपनी जो शेप है बराबर की, उसका कितना सरफेस एरिया ज़मीन से कांटेक्ट में है, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करने पड़ते हैं। और
اس کے علاوہ اس کا رولنگ ریزسٹنس، اور پھر جیسے اگر آپ ایک فلیٹ سرفس پہ جا رہے ہیں تو سوری فار انٹرپٹنگ آئی تھنک سوری فار انٹرپٹنگ سعد صاحب، ہمارا ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں میرا خیال، ہم ای وی بائک کا اس کے اوپر جا رہے تھے، تو یہ ہم بالکل ٹاپک چینج ہو گیا، ذرا دیکھ لیجیے ٹائم آپ کا شاید. خالی فورسز بتا رہا ہوں، وہ یہ فورسز جو ہیں بائک پہ بھی ایکٹ کریں گی، تو فزکس جو ہے وہ وہی رہے گی. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تک میں پھر بتا سکوں کہ میرا ٹول کس طرح کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جیسے کہ اگر آپ کسی چڑھائی پہ جا رہے ہیں، اترائی پہ جا رہے ہیں، تو آپ کی جو گریوٹی ہے، اس گریویٹیشن فورسز وہ بھی اثر کرتی ہیں. تو اس کے بعد میں سوئچ کر لیتا ہوں اپنے سوئچ ٹول پہ. یہ ہمارا ٹول ہے جو کہ بیسکلی میٹ لیب اور سیمولنک بیسڈ میٹ لیب ماڈل ہے، میتھمیٹیکل ماڈل ہے. اور اس میں یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، جیسے ویکل سائز، ویٹ ہے، کتنے پیسنجرز ہیں، وہ بھی ایک سارٹ آف ویٹ ہی ہے جو ایڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم ایک کوئی اسٹینڈرڈ بیس لائن ڈرائیو ماڈل رکھتے ہیں. جیسے نارملی یہاں پہ ایف ٹی پی پروسیجر ہوتا ہے، جو کہ فیڈرل ٹیسٹ پروسیجر، جس پہ یہاں پہ ای پی اے جو یہاں کی ایمیشن ٹیسٹنگ وغیرہ کرتی ہے، جو گورنمنٹ ایجنسی، وہ اس پروفائل کو یوز کرتی ہے تاکہ سب کو ایک ہی لیول پہ دیکھ سکیں. اور پھر کچھ لوڈز ہیں جو ریجن بریکنگ نارملی موٹر سائیکلس میں تو نہیں ہوتی، گاڑیوں میں ہوتی ہے. پے لوڈ، اگر آپ نے اوپر ایکسٹرا اگر وزن اور اس میں لے کے آپ ٹریول کر رہے ہیں. پھر موٹر سائز، بیٹری سائز، بیٹری کا وولٹیج، آپریٹنگ وولٹیج، پیک کا کتنا ہے، ٹائر سائز، ٹائر کا ذکر ہوا ہے کہ کتنا کانٹیکٹ ٹائر کا سرفیس ایریا کانٹیکٹ میں ہے گراؤنڈ سے. اور ڈریگ کوفیشنٹ جو کہ آپ کی ایئر ریزسٹنس، جب آپ خاص طور سے جب آپ تیز اسپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور پھر فرنٹل ایریا، یہ بھی آپ کے ایئر ریزسٹنس میں اس کا فیکٹر ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا ایریا زیادہ ہوگا اتنا آپ کو ریزسٹنس زیادہ ملے گا، تو زیادہ فورسز کو آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اچھا، تو اس کو اگر ہم یہ ٹول جو ہے، اس میں ہم نے 3 مختلف فی الحال ہمارے پاس ماڈل ٹائپس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں: 2 ویلرز، 3 ویلرز اور 4 ویلرز. تو جیسا کہ ابھی ہم 2 ویلرز پہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں. تو 82 kg آئی تھنک کسی نے ذکر کیا تھا کہ CD70 کا وزن جو ہے آئی تھنک اراؤنڈ 82 kg ہوتا ہے. اگر اس پہ ایک پیسنجر ہو، ہم اگر سٹی پہ ڈرائیو کر رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اگر اوپن تھروٹل مینوور کریں، جو کہ نارملی ٹاپ سپیڈ کے لیے لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پے لوڈ بیسک ٹیسٹ کے لیے ہم 0 رکھ لیتے ہیں. ڈریگ کوفیشنٹ نارملی موٹر سائیکل میں زیادہ ہوتا ہے، 0.6 تک رکھ لیتے ہیں، اور فرنٹل ایریا 0.9. یہ جو فرنٹ اینڈ ہے، یہ ہم نے یونٹی جو نارملی ویڈیو گیم ڈیزائن میں یوز ہوتا ہے اس میں ڈیزائن کیا. پھر یہ جو پیرامیٹرز ہیں، اس کو یہ بھیجتے ہیں میٹ لیب پہ، پھر میٹ لیب میں یہ پروگرام بیک گراؤنڈ میں رن ہوتے ہیں. یہ ہمارا میٹ لیب ماڈل ہے. اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ڈرائیو پروفائل آپ اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں. ہم نے FTP75 کا بھی ڈالا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ ڈرائیور انپوٹس ہیں. یہ ہمارا کنٹرول ماڈل ہے. اور اس کے بعد یہ جو رائٹ سائڈ پہ پیسنجر کار کا نظر آ رہا ہے، یہ ہماری ڈرائیو ٹرین ماڈل ہے.
तो ये प्लॉट कर रहा है यहाँ पे आपकी ये ड्राइव प्रोफाइल है, इसमें वेलोसिटी दिखा रहा है ओवर टाइम, मोटर टॉर्क है और मोटर स्पीड, और फिर ये बैटरी एसओसी आप देख सकते हैं कि जैसे चलता जा रहा है तो एसओसी कम होती जा रही है। उमर, आपने इसके कुछ यूज केसेस रन किए हैं पहले? जी, तो वो मैं इसके बाद जो है वो समरी आपको दिखा दूंगा। ये पहला रन जो था ये एफटीवी प्रोसीजर था जो कि फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट के लिए नॉर्मली रन करते हैं, और दूसरा जो टेस्ट है अभी वो इसके बाद रन करेगा, वो परफॉर्मेंस का है कि आप टॉप स्पीड कितनी आपकी वो अचीव कर सकते हैं। तो ये टेस्ट अब रन हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब जैसे कि साथ साथ ने कहा कुछ हमने रन, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है तो हमने पहले से रन कुछ रख के उसके रिजल्ट्स रखे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये इसमें जो हमारा बेस लाइन जो मैंने रखा है वो 82 kg, जैसा कि आपने जिक्र हुआ था कि CD70 का तकरीबन वही वजन होता है। उसके अलावा मुझे बाइक के मोटर, और उसके लिए जो है मैंने जो पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुई है इजी बाइक, उनके पास जो उनका बेस मॉडल है उसमें 2 किलोवाट की मोटर है और 1.8 किलोवाट पावर की उनका बैटरी पैक। तो उस पे मैंने रन किया। आई डोंट नो उसका वजन कितना था, लेकिन मेरे ख्याल में कि काफ़ी करीब था, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं उससे बहुत करीब है। तो आई थिंक उनका व्हीकल वेट भी अराउंड इतना ही होगा, 80 kg। उमर, इसमें जो आपने पेलो जो पैसेंजर का वजन है वो कहीं आया कि यहाँ इसमें? हाँ, वो अज्यूम कर लेता है। अच्छा, तो एक पैसेंजर रखा है आपने, ठीक है, एक जी, पैसेंजर रखा है, सही है, ठीक है। और एक पैसेंजर का हमारे मॉडल में जो है वो 75 kg हमने अज्यूम किया है, गिव और टेक। तो आपने पैसेंजर मेरा जैसा रखा है या भोलू पहलवान रखा है पैसेंजर? 75 kg देख लें। अच्छा, ठीक है, मुनासिब एवरेज वजन। वेट। सही। तो ये बेसिक रन जो हमारा बेस लाइन रन है उसमें अगर हम रन करें तो तकरीबन रेंज जो आ रही है वो 69 किलोमीटर की आ रही है और टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर। और जैसे कि मैंने कहा जो इजी बाइक ने जो अपनी वेबसाइट पे डाली उनके नंबर्स तकरीबन यही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे। अच्छा, दूसरा फिर हमने कहा कि अगर मोटर को हम मोटर साइज को वेरी करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब 2 किलोवाट मोटर को हमने अपग्रेड कर दिया 5 किलोवाट। तो उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप स्पीड जो है वो बढ़ गई गाड़ी व्हीकल की, 93 किलोमीटर पर आवर होगी। और इसी तरह जब हमने इस मोटर साइज को और अपग्रेड कर दिया 10 किलोवाट पे, तो ये अबाउट 139 किलोमीटर की स्पीड। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक और फैक्टर आएगा, जैसे आपने मोटर की पावर बढ़ाई तो मोटरसाइकिल का वजन भी बढ़ जाएगा जी, और तो वो मैंने इसमें 82 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा वजन वो। बिल्कुल। तो वो इसमें मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि मेरे पास उसका डेटा नहीं था, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, तो ये नंबर थोड़ा और नीचे चला जाएगा। जी। अच्छा उमर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है अलीम साहब का। जी, तो जी अलीम साहब, गो अहेड। थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर अभी यूज कर रहे हैं इसमें जो आपने शेयर किया कि हम जो मोटर की कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं, राइट, हम 1500 से अगर 2000 वाट कर देते हैं, ठीक है, तो जो टॉप स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है,
تو اس کا مائلیج پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ مائلیج بھی انکریز ہو رہی ہے یا مائلیج جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے؟ اس کو ذرا پلیز. ہاں ایکچوئل جیسا کہ ابھی اجمل بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایکچویلٹی میں تو اس پہ کم، کیونکہ اس کا وزن بڑھ جائے گا تو اس کی رینج میں فرق پڑے گا، وہ کم ہو جائے گی. لیکن کیونکہ ہم آئیڈیل کیس دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس میں موٹر کا جب سائز بڑھایا تو میں نے موٹر کا ویٹ نہیں بڑھایا. تو لیکن سوال کا آپ کا جواب جو ہے نا علیم صاحب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں رینج لکھا ہوا ہے، رینج سٹی، وہ مائلیج ہی ہے اور کچھ نہیں، وہ مائلیج ہے کلو میٹر میں ہے وہ. تو آپ دیکھیں وہ 3 کیسز میں جو ہے 69 52 52 ہو گیا نا، وہ کم ہو رہا ہے. اور یہ مزید گرے گا اگر تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ جیسے اس میں کیسز جو ہے نا موٹر پاور بڑھ رہی ہے تو آپ کا موٹر سائیکل کا وزن مزید بڑھے گا. جو 82 کلو گرام ہے تو وہ 82 سے ممکن ہے 90 ہو جائے، تیسرے کیس میں 95 ہو جائے یا 100 ہو جائے. تو اس کیس میں پھر آپ کا یہ جو اس میں رینج سٹی لکھا ہوا ہے جس کو آپ مائلیج کہہ رہے ہیں، تو وہ 52 سے اور نیچے چلا جائے گا، 50 سے اور نیچے چلا جائے گا وہ. اوکے رائٹ، پلیز کنٹینیو، پھر آخر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں مزید. اچھا سیکنڈ کیس جس میں زیادہ کافی لوگوں کو انٹرسٹ تھا وہ تھا کہ وزن بڑھانے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو پہلا بیس لائن تو وہی رہا ہمارا، تو وہ تو نمبرز وہی ہیں. دوسرا کیس میں جو ہے میں نے ایک پیسنجر ایڈ کر دیا. تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینج جو ہے وہ 69 سے 61 پہ چلی گئی. سب کے اسپیڈ پہ کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑا، تھوڑی سی probably round of error ماڈل. تیسرے کیس میں جو ہے میں نے 2 پیسنجرز کے ساتھ ایک ایکسٹرا پے لوڈ بھی ڈال دیا 25 kg کا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید رینج کم ہو گئی 59 کلومیٹر کی، اور ٹاپ اسپیڈ تقریباً وہی. یہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسل کی ان کو نمبر نظر نہیں آ رہے. اچھا تھوڑا زوم ان کر لیں تھوڑا سا عمر. جی اب بہتر؟ یہ احسان صاحب اب راز صاحب بہتر ہے؟ یہ اور بڑھ کر کنٹرول کر مڈل باکس کو رول کریں تو وہ بڑھ جائے گا وہ جب صحیح ہے. اب اوکے، اب بہتر ہے، ٹھیک ہے، اوکے آ گیا ان کا. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تیسرے کیس میں نے 2 پیسنجرز کے ساتھ تھوڑا ایکسٹرا وزن بھی ڈال دیا 25 kg. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینج پہ تھوڑا اور فرق پڑا ہے، اور نیچے چلی گئی. اچھا ڈرائیو پروفائل آپ نے عمر کون سا لیا تھا اس میں؟ اس میں وہی تھا ایف ٹی پی، موٹر سائیکل کا جو ایف ٹی پی کا موٹر سائیکل. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ میرا خیال ہے اگر پاکستان کے میں اس کو آپ دیکھیں تو پاکستان کا اپنا ڈرائیو پروفائل ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے یہاں پہ وزن کے بڑھانے سے نسبتاً کم اثر آ رہا ہے رینج پہ. تو پرسنٹیج وائز آپ دیکھیں تو خاص طور پہ دوسرے اور تیسرے کیس میں تو صرف 1-2 کلومیٹر کا فیصد فرق آیا. تو ون ہیز ٹو تھنک کہ پاکستان میں کس طرح کا میں بھی وہاں کے ایکسپیریمنٹ کر کے ویریفائی کریں. صحیح. ہاں اچھا اس میں کوشچن اسلم صاحب کے لیے. اسلم صاحب آپ نے اس پہ خاصا کام کیا ہے with retrofits and conversions. آپ کے خیال میں یہ جو افیکٹ ہے 1 versus 2 passengers، اس میں کتنا فرق آتا ہے رینج میں for a 70 cc size bike؟ تقریباً 10 کلومیٹر کا فرق آ جاتا ہے. 10 کا آتا ہے. اچھا یہاں پہ آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ مطلب ہم ڈیٹا جو ہے صرف 10 کلومیٹر کا فرق نہیں آتا، بلکہ آپ کے جو لوڈ ایمز ہے نا اس کے فرق آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کی جو بیٹری رینج ہے وہ جس پہ اگر ڈیزائن ہے آپ کی بیٹری سے 70 کلومیٹر 1 چارج پہ، تو وہ اگر 10 کلومیٹر کا ایک تو سپیڈ کا فرق آئے گا. اگر آپ کی ٹاپ سپیڈ فرض کریں 60 ہے اور وہ 50 پہ آ جائے گی، اور ان اے سیم ٹائم اگر اس کی 70 کلومیٹر کی 1 چارج کے اسے چلنا ہے تو وہ اراؤنڈ 50-55 کے قریب آئے گی. ٹھیک ہے. تو عمر پھر میرا خیال ہے آپ کی جو چیز جو ابھی وہ ہے نا فرق جو ہے، جو آپ کا ڈرائیو لائن لاسز ہے نا وہ بڑھ جائیں گے، فرکشن بڑھ جائے گی نا. جیسے وزن آپ کا بڑھے گا اور رولنگ ریزسٹنس بڑھ جائے گی، اور چیزیں بڑھیں گی، وہ شاید آپ نے شامل نہیں کی ابھی اس میں.
हाँ मॉडल में तो है, हमें दोबारा रन करके देखूंगा कुछ ये रिजल्ट जो है think, लेकिन अब इसमें बेसिकली बस फर्क जो है वो 25 kg का एक्स्ट्रा है, तो उस एक पैसेंजर और 2 पैसेंजर में देखिए ना, उसमें 75 किलोग्राम का फर्क आ गया। असलम साहब कह रहे हैं कि स्पीड में 10 किलोमीटर ड्रॉप कर जाती है, आपके पास 1 किलोमीटर की ड्रॉप है स्पीड में। हाँ, और लेकिन वो दूसरा फैक्टर ये भी है कि वो ड्राइव प्रोफाइल क्या है उनका। हाँ, ये बात भी सही है, ड्राइव प्रोफाइल भी है सही। तो वो ड्राइव जो असलम साहब आप कह रहे हैं, वो आप किस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं जिस केस में आप कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर का फर्क आता है टॉप स्पीड में? जो मतलब आपकी जो हमने फिजिकल टेस्ट लिया ना, एक नहीं बहुत सारे हब मोटर्स पे भी और दूसरी मोटर्स के साथ भी, तो जो आपने एक सेटिंग की है एक एक्स नंबर, यानी वहाँ 1 2 3 अगर किसी ने स्पीड की रेंज रखी हुई है, या अगर हम उसके अंदर उसका ट्रांसमिशन को यूज कर रहे हैं, तो मैं 4th गियर पे फॉर एग्जांपल यूज करता हूँ। और सिमिलरली जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक का जो हब मोटर है, उसके ऊपर भी 1 2 3 स्पीड्स को उन्होंने कंट्रोल किया होता है। तो अगर हम टॉप स्पीड के ऊपर उसको भी रखते हैं और अपने वाले को रखते हैं, तो आपने सिंगल पर्सन के जब आप जो लोड डालते हैं और वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे अगर जा रहा है, तो जब आप उसी सेटिंग के ऊपर आप चेंज करते हैं तो 2 लोग बैठ जाते हैं, तो फिर 10 किलोमीटर ड्रॉप कर जाता है। 10 किलोमीटर फी घंटा। ठीक, जी फी घंटा, यानी उसकी जो टॉप स्पीड है 60 के बजाय 50, और अगर बहुत अच्छी रोड होगी तो वो 55 तक भी चली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इशू है ना, चूंकि थोड़े उसके एम्स बढ़ते हैं और उनके चूंकि बाकियों के अंदर ट्रांसमिशन का ये पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए उनकी जो बैटरी है ना बहुत जल्दी, अगर आपकी वो एज्यूम करें 60 किलोमीटर पे है तो वो या 70 किलोमीटर पे है तो वो 15 किलोमीटर से भी ज्यादा ड्रॉप कर देगी, जो 1 चार्ज रेंज है इसकी। रेंज ड्रॉप कर जाएगा, सही, ठीक है, ठीक है। अगर हम ट्रांसमिशन यूज करते हैं जैसे हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूं, जो हमारे पास टेस्ट है, तो हमारा 4 गियर होते हैं जनरली मोटरसाइकिल के, तो हमारी जो सेकंड स्पीड गियर से आप चलाते हैं तो वो 40 किलोमीटर तक टॉप स्पीड जाती है आप, और सेकंड अगर थर्ड गियर में जाते हैं तो 50 पे जाती है, 4th गियर में जाते हैं तो तकरीबन 63 माइनस प्लस पे जाती है, डिपेंड करता है रोड कंडीशन क्या है। अब इसी तरह से जब आप इसके ऊपर लोड डालते हैं तो हमारे पास ट्रांसमिशन के साथ हमें बेनिफिट ये होता है कि मोटर का लोड कम करने के लिए उसके साथ आप थर्ड गियर पे आ जाते हैं, तो आपकी जो टॉप स्पीड 50 पे आ जाएगी, तो उसके जो ऊपर जो किलोमीटर की रेंज रिड्यूस होती है वो ड्रामेटिकली नहीं होती, बहुत कम बनती है, क्योंकि उसको उसका लोड जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है टू ट्रांसमिशन। तो लेकिन अगर दूसरों को आप लेते हैं तो उसके पास ये चांस नहीं होता, तो वो सारे का सारा लोड जो है ना डायरेक्टली मोटर और बैटरी पे जाता है, जिसकी वजह से आपकी तकरीबन 15-20 किलोमीटर तक जो है ना वो उनकी ड्राइव का टाइम कम हो जाता है। सही। तो इसमें उम्र पे थोड़े हायर ऑर्डर इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ये फर्क महल में है रियल लाइफ केस में और इसमें, और वो मतलब शामिल कर सकते हैं आप उनको, बिल्कुल। और आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम वैलिडेट कर सकते हैं। मैं एक चीज आपके साथ ये शेयर करूंगा कि एनीवन फ्रॉम 3 ऑफ यू व्हेनेवर यू विजिट पाकिस्तान, तो हम आपके सामने ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करवा देंगे। तो आपको जहां मोटर्स के ऊपर आपने टॉप स्पीड के ऊपर सेटिंग की हुई है, उसके ऊपर सिंगल आदमी के साथ वो क्या टॉप स्पीड जाती है, एक ही लेवल ऑफ रोड है, और 2 लोग रखते हैं जो कि 60-70 किलोमीटर केजी का आदमी और बैठाते हैं, तो फिर देखिए टॉप स्पीड कर जाती है। सिमिलरली जो आपके पास हमारी ट्रांसमिशन वाली है, उसके साथ जब हम उसकी टॉप स्पीड कितना फर्क पड़ता है, ये चीजें आप जब तक फिजिकली देखेंगे नहीं ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो मैच नहीं करेगी, वो मतलब वो मिसगाइड हो जाएगा बंदा। आपका जो कमेंट है ना वो फिजिक्स की बुनियाद पे वो सही कमेंट है बिल्कुल। उसमें जो फिजिक्स, अगर फिजिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो दैट मेक सेंस, तो उसमें कतई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ इस सिमुलेशन में जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें हर पहलू जो है, ये याद रखें, सिमुलेशन इज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। जो हकीकत है उसका पूरी 100%। सर इसको हम कहते हैं सिमुलेशन, इट्स द आइडियल कंडीशन। वेयर एज के जिस वक्त आप रोड पे टेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरियाज हैं कि आपकी टाइप ऑफ कारपेटिंग रोड कैसी है, सीमेंटेड रोड है
हवा की स्पीड क्या चल रही है, वो आपको टेल एंड पे दे रही है या फ्रंट एंड पे आपको हवा मिल रही है, लोग जो बंदे बैठे हुए उसने कपड़े किस किस्म के पहने, मतलब बहुत सारी चीज फैक्टर्स हैं, उनको सामने रख के जब आप इसको, मैं आपको कहता हूँ कि हमने बहुत दफा देखा सिमुलेशन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पास कर जाती हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो वो बहुत बुरी तरह फेलियर होती है। क्योंकि इस एरियाज के अंदर मैंने कोई 150 प्रोजेक्ट मेरे जो पीएचडी ने किए हैं, उनका बेसिक एरिया यही था कि हमने तो अपने तौर पे एक बनाकर बड़ा तीर मार लिया, लेकिन उसके बाद उनको भेजा कि यार इसको देखो, इसके बाल की खार उतारो कि ये कहाँ तक परफेक्ट है। तो उसके बाद पता लगा कि जी हमारी जो बेसिक सिमुलेशन हुई थी वो 50% आउट हो गई, तो आपको सारा कुछ रीडू करना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फिजिकली, ये सिमुलेशन होगी या आपके आइडियल कंडीशन के ऊपर, मगर जब ग्राउंड रियलिटी पे करेंगे तो फिर आपको सही पता लगेगा। तो इसमें असल में फ़ायदा ये होता है असलम साहब के जो है ना, सिमुलेशन जो है बस मेहनत तो लगती है उसमें, उसकी एवोल्यूशन अपनी है, उसका इर्तक़ा अपना है उसका, लेकिन जब वो तरक्की करके उस पॉइंट पहुंच जाए तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको चीज़ें बनानी नहीं पड़ती, आप सिमुलेशन के जरिए कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे एक सर्जन होता है, उसके पास औजार होते हैं। अब वो औजार सर्जन के हाथ में तो सर्जरी करेगा वो, और मेरे जैसे कोई शख्स उसको करे तो आदमी को काट पीट देगा, मार देगा उसको। तो यही बात सिमुलेशन टूल्स की भी है कि जो सिमुलेशन टूल इस्तेमाल करने वाला है उसमें कितनी सलाहियत है उसको समझने की कि क्या इसके एजम्पशंस हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या वो कर रहा है। बिल्कुल वही बात जो कि सर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स की बात है। तो इसलिए सिमुलेशन की अपनी अहमियत मौजूद है, बिल्कुल है, और उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं जैसे आपने निशानदेही की। लेकिन असल बात यह है कि जो सिमुलेशन कोई टूल को इस्तेमाल करने वाला है वो समझे कि क्या लिमिटेशंस हैं। वही बात जैसे कि आप कैलकुलेटर हो या कंप्यूटर हो, आपको 16 डिजिट के नंबर दे देगा वो। अब आपको कहीं टेम्परेचर का नंबर है या प्रेशर का नंबर है या कोई और नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी का, डेंसिटी का 16 डिजिट का नंबर आ गया या 15 डिजिट का नंबर आ गया, तो उसकी उन आखिर के डिजिट की अहमियत है ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट 0.1 भी आप कर लें, बहुत एक्यूरेसी है काफ़ी आपके लिए। तो वही बात इन सिमुलेशन टूल्स में भी है कि वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, और उन लिमिटेशंस को जब समझते हैं तो फिर जो उसके सिमुलेशन टूल बनाने वाला है वो इनको ग्रेजुअली इंप्रूव भी करता रहता है। तो वही बात यहाँ पे हो रही कि उमर से अभी जो हम बात कर रहे थे कि इसमें बाज़ और चीज़ें हैं, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि आज़ाद साहब ने जिक्र किया कि आई थिंक रियल लाइफ डेटा से वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम वैलिडेट करते जाएंगे तो उससे और बेहतर होता है। और इसको यहाँ पे शेयर करने का मकसद भी ये था कि इसको कोरिलेट किया जाए रियल लाइफ में, जो वहाँ पे आप लोग टेस्ट करके जो देख रहे हैं उससे इसको कोरिलेट भी किया जाए। और इसमें मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा कोलैबोरेशन भी हो सकता है क्योंकि मैं आपसे अजमल साहब एक थोड़ी सी अर्ज करूं कि जैसे अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ना 2002 किलोवाट की मोटर्स लगा रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में कहीं अलाउ नहीं है। यहाँ तो मैंने ये भी देखा कि वो मतलब इक्वल टू सीसी जो है वो 150 सीसी के इक्वलेंट को डालते हैं, तो 2000 सीसी की कहीं बाहर तो मैंने जितने स्टडी किया वो अलाउ नहीं करते हैं। बल्कि वो अगर किसी ने वहाँ 70 सीसी के इक्वलेंट जो है ना, चूंकि उसकी बॉडी जो है वो डिजाइन सर्टन उसके लिए है, और उसके इक्वलेंसी जो उन्होंने निकाली है कि जिससे 800 वाट की मोटर होनी चाहिए और उसको एक्सट्रीम लेवल पे 1000 वाट पे चले जाए। लेकिन अगर उसको आप 1500 वाट लगाते हैं या उसको 2000 वाट लगाते हैं तो फर्स्ट वर्ड तो अलाउ नहीं करता। तो यहाँ तो वो कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए जो चीज का दिल चाहता है वो लगा रहा है, लेकिन इसके जो बेस लाइन है ना उनको, जैसे हमने पहले देखा था कि उसको चीजों को डिफाइन करने की जरूरत है, तभी को मामला आगे चलेंगे, वरना सारे ही जो है ना वो मिसलीड हो रहे हैं कि वो सही पोजीशन लोगों को नहीं पता लग रही क्या है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो आपने टॉपिक को रखा था, आल्दो ये से आप रिलेट कर रहे हैं, लेकिन उतना रिलेट नहीं कर रहे हैं जितना कि आप उस टॉपिक के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप जरा थोड़ा सा मजीद फोकस करिए कि आपने आपके जो मेन इशू रेंज के इशू क्या हैं, मोटर्स की कैपेसिटी के इशू क्या हैं, उन चीजों का जरा डिस्कस करें तो ज्यादा यूजफुल होगा मेरा ख्याल है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा सलमान साहब, यू हैव योर हैंड रेज्ड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी और सर ये मॉडल जो आपने बनाया है यानी कि CD70 या 70 किलोमीटर के हवाले से बनाया है, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सर अब आपको भी पता है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि अब अंदाजन तो हम ये लेके चले हैं कि इस पे इतना वेट होगा और ये इतना यानी कि रेंज पे चलेगी,
लेकिन अगर हम वैसे ही, ये वैसे छोटा सा सजेशन है अगर आप इस पे गौर करें सर, ये अगर हम इसको तैयार ही करें कि दूध वाली बाइक के लिए जैसे दूध वाले लेके चलते हैं, या फिर 3 सवारियों के लिए लेके चलें, यानी कि एक्सट्रीम या बीस्ट हद तक ना इसकी, जहाँ 70 की कैपेसिटी है ना 70 किलोमीटर पर आवर की, वहाँ 150 किलोमीटर पर आवर की पहले से ही कैपेसिटी लेके चलें। मुश्किल है ये, लेकिन अगर इस तरह लेके चलें तो हर यानी कि मरहले के लिए पहले से तैयार हो, तो इससे हल्का काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर वजनी काम होगा तो वो इतना उसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक बाइक है तो इस पे ज्यादा मसला ना हो जाए। तो सर ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। साथ भाई मैं इनको रिप्लाई करूं जरा, प्रैक्टिकल बेस पर मैं इनको देखिए सलमान साहब, इसमें जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल जिसके ऊपर हम इस वक्त फिजिकली जा रहे हैं, हमने बैटरीज के 4 मॉडल डिजाइन किए हैं। उनमें से एक पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बैटरी है वो 2 किलोवाट की है, जिसमें तकरीबन 70 किलोमीटर एक चार्ज में चला जाता है। फिर वो 90 है, 120 है, 150 है। अब ये जो यूजर है जिस वक्त तो उसको रेट्रोफिटिंग करेगा या लेने परचेज नहीं करेगा, वो अपनी ऑप्शन को देखता है कि चूंकि हर बैटरी के साइज के मुताबिक प्राइस का फर्क है, तो वो उसको देखेगा कि मैंने कौन सी बैटरी पे जाना और मैं किसके ऊपर मेरे लिए फिजिबल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका जैसे 70 सीसी का इंजन है तो उसके साथ आपको ये पता है कि जो लोड बेरिंग 2 लोगों के साथ 3 का करता है, तो मेरे पास अगर लोड ज्यादा है तो मैं अपनी जो ट्रांसमिशन है उसका 1 गियर डाउन करता हूँ पहले से चलने के बाद, वो शायद 4th गियर में जाता ही नहीं जब वो ओवरलोड कर रहा होता है। तो ये चीजें जो है ना, ये कम से कम हमने तो ये बहुत सारी कंसीडर की हैं। कंसीडर करने के बाद इसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेके आए हैं। आपने ये बात की कि आप डिजाइन करें कि 150 किलोमीटर के लिए, तो इसका मतलब जब आपका लोड नहीं होगा तो कोई मोटर बाइक 150 किलोमीटर पे जाएगा तो 99.9% चांसेस हैं कि वो एक्सीडेंट करेगा। तो इसलिए इसकी जो टॉप स्पीड की लिमिटेशन है वो आल्दो 50, 60, 70, 80 आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मेरी बहुत सारी बड़े डिफरेंट लेवल के ऊपर ईडीबी में और पीएस की वहां जो लिमिट फाइनली जब होगा तो वो 60 किलोमीटर से ऊपर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट केसेस जो है ना बाइक के, अगर आप 60 किलोमीटर तक की स्पीड है ना तो ये कंट्रोलेबल है, लेकिन इससे ऊपर जब जाते हैं तो उस वक्त ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जरा सा भी मिसहैप होता है, दाएं बाएं बंदे की नजर होती है तो उसके बाद ब्रेक लगाने की सूरत में या उसका जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लिहाजा इसको, और फिर बड़ी बात यह है कि अगर ज्यादा बड़ी रेंज की आप बैटरी रखना चाहते हैं तो आपका वेट ज्यादा होगा, उसके बैलेंसिंग के बहुत सारे इशू आते हैं। मगर 60 किलोमीटर की रेंज से ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आगे चल के जब स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो इसको अलाउ करेगा। और जो मोटर की कैपेसिटी है वो 100 यानी 1.5 किलोवाट से ज्यादा किसी भी सूरत में, जो जनरली हमारे पास 1 to 5 तक की मोटर्स हैं, साइज का इक्विवेलेंसी है, वो भले डायरेक्टली ई बाइक बने या रेट्रोफिटिंग करे, एदर वे इससे ज्यादा कैपेसिटी की रिकमेंडेबल नहीं है, मैं ये समझता हूं, जो एक्सपीरियंस को सामने रखा। बहरहाल एनी क्वेश्चन, अगर मैं कोई हेल्प कर सका तो सर प्लीज। अच्छा, साद खुशनू साहब आई थिंक हैज अ फ्यू कमेंट्स। जी गो अहेड साद। वैसे तो मैं चैट पे ही ज़्यादा वो चीज़ें उसके बारे में लिख रहा था। एक जो चीज़ बोली थी कि पाकिस्तान में हम 2000 वाट की जो मोटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड में तो इसके बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, एंड इट विल नॉट बी अलाउड। आई अंडरस्टैंड कि ये मोस्ट लाइकली फर्स्ट वर्ल्ड के सिनेरियो के लिए बहुत अच्छा फिट नहीं है, बट जैसे मैंने चैट में बोला, पाकिस्तान में हमारी मोटरसाइकिल फैमिली कार है, विच मीन्स दैट इट नीड्स टू, इसको ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी है तो मोटर भी नेचुरली ज़्यादा बड़ी ही होगी। और अगर हम रेट्रोफिट ही कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है कि हम फ्रेम को ज़्यादा बदलें, तो वी आर काइंड ऑफ स्टक यूजिंग अ 2000 वाट और इवन हायर मोटर। वो दैट्स लाइक द एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, कुछ चॉइस नहीं होगी। दूसरी बात, सुहेल साहब ने बोला कि 1.8 किलोवाट आवर हम एक बैटरी के अंदर यूज़ कर भी सकेंगे, यानी अगर अब विदाउट एक्टिव बैलेंसिंग। तो हमने क्योंकि डिफरेंट बैलेंसर्स को इस्तेमाल किया हुआ है, अपना भी बनाया हुआ है, so we've noticed that even Chinese passive balancers में you can get up to 90% and sometimes slightly higher capacity utilization बैटरियों में, मतलब मोबिलिटी में भी तो हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स एक्टिव के साथ आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, फिर आपको खुद वे करना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अभी तो यही मेन चीज़ है मैंने नोट की है। हाँ, तो सेकंड पॉइंट पे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। तो जैसा आप कह रहे थे, जो नॉर्मली बैटरी लेवल पे आप सही कह रहे हैं, और लेकिन एज अ व्हीकल लेवल, जो सिस्टम लेवल पे सेफ गार्ड्स होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा लो बैटरी को ना जाने दें। तो आई थिंक एक सर्टेन पॉइंट पे अगर 20% पे पहुंच जाए बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज की, तो वो लोड शेडिंग शुरू कर देता है सिस्टम, जो है जो अननेसेसरी लोड्स हैं उनको या तो बंद कर देगा या डिग्रेड कर देगा, ताकि बैटरी ज़्यादा सेफ रहे। Absolutely. I mean, there's some level of load shedding from a vehicle perspective जो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि at the end of the day आपकी स्पेशली जो प्राइम मूवर के चलाने वाली बैटरी है, that has to be सबसे हाई प्रायोरिटी पे, तो उसको ही बचा के रखना है। Exactly. लोड शेडिंग तो ऑफ कोर्स करनी पड़नी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ये क्योंकि मोटर के पावर की बात आ रही है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा एम्बिगुअस टर्म है। हम जब इस्तेमाल करते हैं 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 1.2, 2.5, जो भी आप पावर कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो एक्चुअल उसका टॉर्क डिलीवर होता है मोटर का, या पावर डिलीवर होती है, ज़रूरी नहीं कि वो सब लोग एक ही तरह की बात कर रहे हों। सो आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल जब हम जो है मोटर के पावर की बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं। आया हम इनपुट पावर की बात कर रहे हैं या आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं। ओके, इनपुट पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, तो फिर आपकी मोटर एफिशिएंसी की बात आएगी, और मोटर एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है स्पीड पे और टॉर्क पे। तो थोड़ा सा इसमें वजाहत है कि जब मोटर जब पावर की बात हो रही है कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। अच्छा, एक साहब हैं कोई अलीम साहब करके, वो कुछ बात करना चाह रहे थे, उनका चैट मैसेज उन्होंने दिया हुआ है, पता नहीं बाद में उन्होंने बात की नहीं की उन्होंने। अब्दुल अलीम मल्ला, तो पता नहीं अब है नहीं है। जी सर, मैं ऑलरेडी वो जो था क्वेश्चन वो हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, ठीक है, चलिए। जी हाँ, तो बाकी ये कि जब क्लोज होगा या क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तो फिर मजीद ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मे बी असलम साहब कैन आंसर और अदर्स, यू नो, जिसके पास भी इंफॉर्मेशन हो। जो होंडा की CD70 है, इसकी मैक्स स्पीड क्या है विद 1 पैसेंजर? मैंने जो देखा है जी वो 90 तक चली जाती है जनरली, लेकिन जो नई होती है, बाद में जो यूजेस में आती हैं, यानी कुछ टाइम गुजरता है, तो उस वक्त कोई 70 माइनस प्लस पे मैंने देखा है लोगों को। जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रोड साइड पे जाते हैं तो लोग जो यूज कर रहे होते हैं उसमें 60 स्पीड के ऊपर तकरीबन 80% लोग जो है ना वो बाइक को मूव करते हैं। अच्छा। और 50% बिलो जो है वो तकरीबन कोई 10% यूज करते हैं। और इसके बाकी जो है ना वो 70 प्लस वाले जो लोग हैं वो कुछ 10% के बीच में वो लोग होते हैं जो इससे ज्यादा स्पीड पे चलते हैं। लेकिन ये डिटरमाइन करना जरा मुश्किल होता है, जो कि बाइक की कंडीशन जो है ना वो हर टाइम में, किसी का प्लग वीक हो गया, किसी के कॉइल वीक है, किसी के पिस्टन वीक है। तो जनरली मैंने ये रेंज तो देखी है, लेकिन अब ओरिजिनली जो डिजाइन स्पीड है उसको वो तो 120 किलोमीटर या 90 किलोमीटर का पता नहीं उन्होंने स्पीडोमीटर दिया होता है। तो दैट मेक्स उसका तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो है वो मैंने एवरेज चलता हुआ यही देखी है। अब इसका बारे में कोई बेहतर और बता सकता है कि किसी ने इसको इस लेवल पे टेस्ट किया हो कि इतनी रेस स्पीड के ऊपर किस कंपनी ने क्या फिटिंग की है, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, नहीं, मैं सोच ये रहा था सर कि अगर नई CD70 90 किलोमीटर पर आवर तक चलती है, तो अगर वो परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो इलेक्ट्रिक बाइक है, तो उसके हिसाब से फिर आप मोटर साइजिंग करें, कीपिंग इन माइंड कि आपकी जो डिलीवर्ड टॉर्क और पावर है व्हील तक वो क्या बनती है, तो उसके हिसाब से आप साइजिंग करें और एंड देन फिगर आउट क्या। लेकिन इसमें बड़ी बात ये आएगी कि जो कीमत है दैट विल ट्रम्प द स्पीड। अगर फर्स्ट सर इसमें एक अजमल सर सॉरी, इसमें एक ज्यादा बड़ा इश्यू है। जब आप इलेक्ट्रिक बाइक पे आते हैं तो आपके पास से कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके लिए स्टेट को जो है ना इसके ऊपर इम्पोज रखनी पड़ेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट की सूरत में अगर आपके पास बैटरी है, बैटरी का शॉर्ट सर्किटिंग होना, ब्लास्ट होना या उसको आग लगने के
बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बनिस्बत अगर वो बंदा फ्यूल वाला चल रहा होता है उसमें एक्सीडेंट तो होते हैं, लेकिन ऑल द टाइम फ्यूल जो है ना खारी का भरा हुआ नहीं होता है, उसकी एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े से मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पेट्रोल के ऊपर थोड़ा सा चांसेस कम होता है कि इस किस्म का एक्सीडेंट हो और उसे आग लग जाए, लेकिन बैटरी की सूरत के अंदर जो है ना ऐसा कोई एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है कहीं से भी, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये काफी इस लेवल को इस पे काफी ज्यादा सर्टन लेवल पे डिस्कस हुआ है। एक तो स्पीड को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पीड को लिमिट रखें। आपको ये मैं बता दूं कि PSQC की तरफ से जो एक्चुअल स्पीड की लिमिट है ना वो 60 किलोमीटर के ऊपर किसी बाइक को अलाउ नहीं है। ये मैंने खुद डॉक्यूमेंट देखे हुए हैं। और जो रिक्शा है उसकी कुछ शायद 40 किलोमीटर की स्पीड अलाउ है, लेकिन लोग 75 पे भी जाते हैं, जेट खोलते हैं और चलाते हैं, मगर अलाउ नहीं है। 60 किलोमीटर उन्होंने लिमिट दी है, मगर इसको जो ऊपर लेके जाते हैं सब मिस यूज करते हैं सर। नेपाल में एक जी एक और कोई अस्सलाम वालेकुम सर। दरअसल मैं लेट आई हूँ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मेरे घर में फंक्शन था, तो आप पूरी अभी थोड़ी देर में आपका भी जो है ये खत्म हो जाएगा, तो आप मुझे प्लीज बताएंगे कि टॉपिक क्या था आज का। जी आपके साथ शेयर कर लेंगे इसकी रिकॉर्डिंग जो है। टॉपिक आज का था रेंज और परफॉर्मेंस को किस तरह से सिमुलेट किया जा सकता है और उसमें क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस रेंज को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर। दैट वाज द टॉपिक टुडे। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लेंगे सो यू कैन वॉच इट। हेलो जी जी हेलो। अच्छा सर, ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे आपने लिखा 2 किलोवाट मोटर का जो साइज है, तो हेलो जी 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 सर, ये 2 किलोवाट जो है दैट इज द आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टॉर्क एंड स्पीड। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी यानी आपने यहाँ पे ली है इसकी, जो 2 किलोवाट की मोटर है वो किस स्पीड से रन हो रही है और उसका टॉर्क कितना जनरेट कर रही है? तो इसमें जो हमारा मॉडल है वो बेसिकली एक एम्पेरिकल मॉडल है टेबल बेस्ड, जिसमें मुख्तलिफ टॉर्क वर्सेस स्पीड जो है ब्रेक पॉइंट्स हैं, तो वो उस स्पीड पे वो आउटपुट, और वो एक जेनेरिक मॉडल है, तो उसको हम किसी पर्टिकुलर मॉडल काशिफ साहब जवाब इसका एक और जवाब ये है कि आप देखें इसमें पहिए का साइज लिखा हुआ है जी जी और स्पीड भी आती है, स्पीड भी है। तो जब स्पीड और पहिया आपका है तो दैट एसेंशियली डिटरमिन्स के किस स्पीड पे मोटर चल रही है। और पावर एक कांस्टेंट नंबर है, रोटेशनल स्पीड आपको मालूम है तो आप टॉर्क उससे निकाल सकते हैं। टॉर्क इज नॉट इंडिपेंडेंट, टॉर्क डिपेंड हो गया आपका स्पीड पे और मोटर पावर पे। टॉर्क डिपेंड ऑन द वेट, अगर मतलब कोई सपोज करें मोटर ने वेट को लिफ्ट करना है ना, मोटर ने वेट को रोटेट करना है। अगर 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो वहां पे डेवलप टॉर्क क्या होगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क सपोज करें हमने कहा ये 2 किलोवाट्स की है तो ये कितना मैक्सिमम लोड बेयर कर सकती है। हाँ, तो टॉर्क जो आ रहा है ना, दो तीन जो टॉर्क की डिमांड है, डिमांड टॉर्क जो है वो 2-3 जगहों से आ रहा है ना। एक तो जो कि मोटरसाइकिल का अपना वजन है या सवारी का वजन है या फिर उसमें एरोडायनामिक ड्रैग है या टायर का, जितने भी और फैक्टर जो अभी उमर ने दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो जितने भी फैक्टर्स हैं दे विल ड्राइव के डिमांड टॉर्क कितना आएगा। ठीक है, और जो पहिया के साइज है, न्यूटन मीटर में कोई 2 किलोवाट का मोटर है वो इतना न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है, मैक्सिमम टॉर्क। आप स्पीड कह लें जी, ये आपके पास है जी, ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली जो स्पीड है इस पे कितना टॉर्क आ सकता है, क्योंकि स्पीड तो हमारे पास होती है आपके पास रेवोल्यूशन पर मिनट में, रेवोल्यूशन पर मिनट के बाद भी रेडियन पर सेकंड में आ जाती है और मल्टीप्लाई बाय टॉर्क, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पावर आती है। जी 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 जी, तो मैं इस हवाले से वो बात करना चाह रहा था कि कोई मतलब वैल्यू हो यहाँ पे। मेरे ख्याल में वो इंटरनल कैलकुलेशन तो होगी, कोई इसमें आउटपुट पे टॉर्क की वैल्यू नहीं रखी गई। उमर आप कंफर्म कर ले, मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक आपने आउटपुट टॉर्क की रखी है इसमें। सर एक्चुअली जब हम मोटर की बात करते हैं ना, ये 1 किलोवाट की मोटर है या मेरे पास ये 300 वाट की मोटर है और या मेरे पास ये 250 वाट की मोटर है, तो मैं ये करता हूँ कि इसका टॉर्क कितना न्यूटन मीटर है और जब ये इतने स्पीड से चले तो इसका टॉर्क कितना न्यूटन मीटर होगा। ये उमर दिखा रही है, ये टॉर्क का कर्व दिखा दिया इन्होंने आपको। आप जो कह रहे थे ना वो आ गया, टॉर्क का कर्व आ गया। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू ये राउंड अबाउट
ये न्यूटन मीटर्स में है, तो आई थिंक इट्स अबाउट न्यूटन मीटर में नहीं, 20 ये इतना तो ये नीचे वाला कर्व है या ऊपर वाला कर्व है? ऊपर वाला इस वाला, आरपीएम नीचे है, वाला, नीचे नीचे वाला, वाला, नीचे हाँ वाला। नीचे वाला, तो और पीक टॉर्क है 120 न्यूटन मीटर। 120 ये 20 न्यूटन मीटर 19 राउंड अबाउट आ रहा है जी 18-19 के आसपास होगी। और सर ये जो स्पीड है ये तो अच्छी खासी जा रही है आरपीएम में अगर आप देखें तो ये राउंड अबाउट 5000 और ये 7000 के राउंड अबाउट बन रही है। तो ये मोटर की स्पीड है, ना कि पहिए की हाँ। स्पीड। जी मोटर स्पीड लिखा हुआ है ना वहाँ पे ऊपर। ये मोटर की स्पीड ऑन लोड है या विदाउट, यानी कि एक है नो लोड, एक है फुल लोड यानी कि ऑन लोड? ये सिमुलेशन में तो लोड है ना, सिमुलेशन वाला कैसे होगी? वो तो चल रही है ना मोटरसाइकिल, आप सिमुलेट करें मोटरसाइकिल कितना लोड पुट के किया है इस पे, यानी कि राउंड अबाउट कितना लोड है? लोड से क्या मतलब? वो तो केस दिखाए हुए थे ना, टेबल पे दिखाए हुए थे। वो तो 82 किलो मोटरसाइकिल का वजन है, एक या दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। आई थिंक इस केस में एक पैसेंजर है, तो अबाउट 75 केजी उसका वजन है। और इसमें और दूसरे लोड जो है उसका रोलिंग रेजिस्टेंस का भी लोड होगा, इसमें इसका एरोडायनामिक ड्रैग का भी लोड होगा, वो और चीजें होंगी जो कि इसमें है। पता नहीं इसमें प्लॉट है नहीं है, वो मुझे मालूम। हाँ इसमें प्लॉट नहीं है, लेकिन हाँ उसमें मैं देखता हूँ उसमें शायद हमने जो काशिफ आप इससे क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास अगर मैं मोटर की सिलेक्शन करता हूँ तो मुझे ये पता हो कि इसका न्यूटन मीटर इतना मतलब वो है, और मैं 20 न्यूटन मीटर के अकॉर्डिंगली वेट की कैलकुलेशन वो कर रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं आप। 1% सेट कर सकते हैं, 2% सेट कर सकते हैं, कितना मतलब इस मोटर पे जो है। तो उसमें उसका तरीका ये होगा कि अब ये आपके स्पेसिफिक सवाल है ना, तो जरूरी नहीं कि ये सॉफ्टवेयर इसका जवाब दे पाए, लेकिन सिंपल मॉडिफिकेशन के बाद आप कर सकते हैं वो चीजें। बहुत सिंपल मॉडिफिकेशंस हैं कि आउटपुट आपको क्या चाहिए और इनपुट क्या चाहिए, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। बेसिक मॉडल यही रहेगा। अजमल साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आपने आरपीएम उसके बात कर रहे हैं ना 5000 7000, तो मेरा नहीं ख्याल कि हब मोटर में या इसमें जैसे हम यूज कर रहे हैं मोटर उसके 25 to 3000 उसके आरपीएम है, और हब मोटर के भी जो होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली पहिए के साथ अटैच होती है तो उसके भी इतने आरपीएम नहीं होते हैं। हाँ वो तो 230 आरपीएम। यहाँ कुछ जो है ना, हाँ यहाँ कुछ जो है ना वो जो 7000 या 5000 वो चीज कोई मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जो आप मोटर इसके अंदर डिजाइन करें उसके अंदर ट्रांसमिशन तो नहीं है। तो अगर ट्रांसमिशन हो तो अगर 5000 या 7000 आरपीएम है तो इसका मतलब ट्रांसमिशन से आपने लोड को बैलेंस किया और उसके आरपीएम व्हील के ऊपर रिड्यूस कर लिए। तो वैसे अगर चीज नहीं थी इतनी हाई आरपीएम के ऊपर मोटर एटलीस्ट बाइक के लिए तो कहीं भी मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है। ये असल में जो है मोटर की होगी, आप आगे देखें उससे ना वो गियर बॉक्स लगा होता है तो वो 3 टाइम लेस हो जाती है। नहीं देखें गियर बॉक्स, वो जो गियर बॉक्स भी लगा होता है उसके अंदर भी वो ड्रॉप कितने परसेंट 5000 से 300 तो नहीं वो करती ना जी। ये मतलब ये बिल्कुल किसी भी तरह से वो किसी कैलकुलेशन में नहीं आती है। एनीवे इसको आप रिव्यू कर लीजिए। ये गाड़ियों में जो आजकल जो मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं है सर, उसमें उसके अंदर जो है ना उसके अंदर जो है ना उसका चीज बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसको इस तरह मैच नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो आप मोटर नहीं लगा रहे हैं, या दूसरे भी अगर चेन लगा के भी लगाते हैं तो यहाँ ट्रांसमिशन यूज करते हैं। इवन देन बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन उस समय भी हम मोटर जो यूज कर रहे हैं वो 2500 से 3000 आरपीएम की मैक्सिमम है, और जिसके अगेंस्ट हम 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर टॉप स्पीड लेते हैं, जिसके अंदर हम 2 बंदों का लोड भी डाल लेते हैं। तो अगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अनलोड भी करें तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि एक बंदा बैठा है और अब वो आपकी टॉप स्पीड जो आपने सिस्टम के अंदर दी हुई है, यानी जो डिजाइन है, वो अगर 65 किलोमीटर तक जाती है तो वो ऐसा नहीं होगा कि 90 चलाई जाए। तो उसकी जो लिमिटेशन है वो कंट्रोल करती है, आरपीएम को उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देती है। लोड अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका लोड के इफेक्ट से जो उतने वो उसका एम्पेयरेज से ज्यादा ड्रॉ करेगा, और उसके बाद वो चंद किलो जो स्पीड है ना चंद किलोमीटर की वो ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन इतनी ड्रामेटिकली चेंज नहीं होगी। मगर ये जो है ना 7000 5000 ये मुझे मतलब मेरे ऊपर से गुजर गई है। आप ज्यादा समझते हैं कि इतनी ये कौन सी जगह मोटर लगती है जो इतने हाई स्पीड की होती है। इसमें जो हमारा मॉडल है उसमें आगे ड्राइव ट्रेन का भी मॉडल है इसमें, तो
हाँ, लेकिन आपकी बात सही है, अगर आपके पास जो मोटर है, अगर आपके पास उसके कर्व्स हैं तो वो आप हमें मुझसे शेयर कर लें तो हम उसको रन करके देख सकते हैं। चले, मैंने सिर्फ पॉइंट आउट कर दिया ताकि आप जो दोबारा सिमुलेशन करें तो इसको देखिए। मोटर के आरपीएम इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप व्हील के ऊपर 250-300 आरपीएम तक मैक्सिमम जाते हैं, और मोटर के जहां वो 2500 से 3000 आरपीएम है जो जनरली यूज होती है। अच्छा, इसमें असम साहब ये इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उमर का, कि अगर आपके पास जो कर्व्स हैं मोटर्स के, अगर आप वो शेयर कर सकें तो वो फिर हम मॉडल में भी रन करके देख सकते हैं उनको भी, क्योंकि इससे ये कि ये थोड़ा साथ मिल के ये डेवलप हो जाएगा टूल। पॉइंट्स आर वैलिड आरपीएम के हवाले से, लेकिन आई थिंक इफ यू हैव सम रियल मोटर कर्व्स दोस विल हेल्प। उससे ये भी होगा कि बस हम वो अपने हमारे मॉडल को वैलिडेट, हमारे जो लोग हैं ना जिनके साथ काम, और वो बड़े शहजादे हैं, उनकी गवर्नमेंट तनख्वाहें देती हैं और वो काम अपनी मर्जी से करते हैं, लिहाजा जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो अभी आपके पास नहीं आप कह रहे हैं? वैसे इस नहीं, इस वक्त प्रॉपर एक मेरे ने टॉपिक बन सकता है ये हमने जो सॉरी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ऑन ग्राउंड इक्विपमेंट मोटर लगा के सारे टेस्ट ड्राइव लेके को 5,500-6 हजार किलोमीटर हर एंगल से, जब पहाड़ी पे चढ़ना, वो 2 सही है, बंदों वो का सही लोड, है। मतलब वो सारा कर लिया। लेकिन जी वो जी जो जी। डॉक्यूमेंट होता है ना जिसके अंदर वो एक अदारा जो है ना वो उसको वैलिड करके स्टैम्प करता है कि ये इसका टार्क लोड है, ये इसकी एफिशिएंसी मोटर की इतनी है, इतने लोड के ऊपर ये परफॉर्मेंस करती है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है ना एक ऐसा वैलिड होता है। तो आई एम श्योर जब तक मार्केट के अंदर हम इसके प्रोडक्शन फाइनलाइज करते हैं सब तक आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारी जगह के ऊपर हमें अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो आ जाएगा। लेकिन अभी तक अप्रूवल तो दे दी है, मगर बात सीधा हमारे पास डॉक्यूमेंट आया नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ कोई चीज ऐसी कह नहीं सकता हूँ कि वो कब तक आएगा, लेकिन आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। बट ये वो प्रोसेस हमने जरूर किया पूरा। चले चले, वो आए तो जरूर शेयर कीजिएगा आजम साहब, क्योंकि उससे ये है कि फिर ये टूल को डेवलप करने में मजीद आसानी होगी। जी जी, श्योर सर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि एटलीस्ट इस पे पूरा एक प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि लोग आम कॉमन मैन है उसको नहीं पता होता ये 250 वाट की मोटर है, 300 वाट की मोटर है, ये 500 वाट की मोटर है, कि एटलीस्ट वो टॉर्क जो है उसके बाद टॉर्क मीटर हो और स्पीड हो वो मेजर कर सके, टाइकोमीटर हो, दोनों से वो ये बता सके कि वाकई इतने वाट की मोटर है या नहीं है। आपकी बात बिल्कुल भाई ठीक है। ये आप जो 2000 वाट की मोटर बता रहे हैं ना, ऐसे ही है कि हमने बहुत सारी मोटरें जो है ना चाइना से उठाकर ना 1000 वाट से लेकर 3000 वाट की हम मोटर मंगाई। जब फिजिकली उनको टेस्ट लाइट बेंच पे डाला गया, लोड डाला, तो पता लगा 1500 वाट से ऊपर ही नीचे को 3000 क्लेम हो रहा था। लिहाजा वो जो है ना फिगर्स बोल देना, अनटिल अनलेस आप इस टेस्ट प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे, उसका जो लोड वर्सेस आपके जो करंट कितना लेती है, इससे पता लगेगा एक्चुअल है कितने वाट की, कितने पे क्या परफॉर्म करती है। तो वो खाली जो है ना जिनसे हम लेते हैं इंपोर्ट करते हैं, वो माशाल्लाह कुछ भी लिखकर भेज देते हैं और हम उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो बहुत ज्यादा सीरियस। तो असलम साहब आपके पास कोई टेस्ट इक्विपमेंट है जिस पे आप टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, मेरे पास मैं जिन अदारों के साथ काम कर रहा हूँ, जो उनके पास टेस्ट का लेवल है वो पाकिस्तान में शायद किसी और के पास है ही नहीं। आपके यूएस में जहाँ काम कर रहे हैं शायद उनके पास तो जरूर होगा, क्योंकि आपका एक सर्टन लेवल है जिसके ऊपर आप बहुत बड़े जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन जिन अदारों के साथ काम कर रहे हैं वहाँ उन्होंने इससे बहुत बेहतर लेवल के जो है ना टेस्ट बेंच लगाए हुए हैं, और वो सारी चीजें काम जो हो रहा है ना वो उनके साथ उनके पास ये सारे अरेंजमेंट्स हैं। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो कर्व्स जनरेट कर सकें मुख्तलिफ नहीं, वो तो ऑलरेडी किया है, लेकिन वहां से वो डॉक्यूमेंट आने में एक सर्टेन प्रोसीजर है। वो ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा गया दरवाजे पकड़ के ले आया या उसको आपने ईमेल कर दिया। उसका तरीका ये है कि हम डायनामोमीटर चाहिए आपको, और मैं ख्याल हम अपना डायनामोमीटर बना लें तो बेहतर है पब्लिक डोमेन में, या उसको जो है पब्लिक सर्विस के लिए जो है डायनामोमीटर सर, सेटअप हो जाए। ये अभी जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना, तो ये जो आप बात करें, क्योंकि मैंने नस्ट में फिजिकल देखा, वहां उन्होंने कर्व के लिए एक टेस्ट बेंच बनाया हुआ, आपने मोटर साथ अटैच करते हैं, दूसरी तरफ लोड होता है और एक कंप्यूटराइज पूरा उसको रन करते हैं, और आप उस हिसाब से जितना बंदे का लोड और बाकी फ्रिक्शन है उसमें ऐड करते जाते हैं, और उसके बाद आपके पास कर्व बन जाता है कि ये क्या करता है। मैंने फिजिकली सारा कुछ देखा हुआ, और वो हमारे साथ कमिटेड है कि एग्जैक्टली यही टेस्ट जो है ना हमारे पास लैब में आएंगे,
लोग जो विजिट करने आते हैं तो दे वांट टू मेक श्योर, चूंकि हमने इस वक्त 27 कंट्रीज का कॉमसेट के थ्रू जो एक साइन किया है, तो हमने ये 27 मेंबर कंट्रीज को भी इक्विपमेंट और सब चीजें देनी है, उन्होंने लोगों ने ट्रेनिंग के लिए आना है। तो हमें अपना एंड जो है ना बहुत स्ट्रांग बनाना है, ताकि कोई बात करके हमें कोई ऐसा ना कहे कि कोई हम ऐसे फेक बात कर रहे हैं या उसका हमारे पास कोई चीज नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आप बात करें वो हमारे पास जब आप लोगों का आना होगा ना, उस वक्त तक मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट बेंच जो है ना वो लगा होगा, और ये इसके सिमुलेशन के लिए विद दी जो भी आप लोड ऐड करेंगे वो ऐड करने के लिए, जैसे मोटर के साथ कपलिंग होती है तो आपके सामने जो लोड है ना वो एक जनरेटर टाइप चीज है, जिसके आगे वो लोड डाला होता है, वो मूव करता है तो लोड ऐड करते जाते हैं, और उसके बाद पता लगता है आपका कर्व का कि आप इसके आरपीएम कितने ड्रॉप हुए, करंट कितना ऊपर चला गया। उसकी पूरी सिमुलेशन जो है ना ग्राउंड, उसकी फिर एक चार्ट बन जाता है और वो आपके सामने होगा, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जी जी, तो हम तो बेसिकली असलम साहब यही चाह रहे हैं कि अगर ये कर्व्स आपके पास आ जाएं तो वो अगर आप शेयर कर लें, ताकि हम उसको उनको भी साथ साथ इसमें मॉडल में फिर डाल मॉडल को। उसके अलावा एक पॉइंट मैं ये भी कह रहा था कि ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनी हैं जो इसी में स्पेशलाइज करती हैं, वो मुख्तलिफ ऑटो कंपोनेंट्स की वो बेंचमार्किंग करती हैं। तो पाकिस्तान में अगर अभी कोई नहीं कर रहा तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप मुख्तलिफ मोटर्स की और बैटरीज की बेंचमार्किंग करें, क्योंकि सर उसमें अजमल साहब ऐसा है ना, चूंकि जब आप मोटर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मोटर इज नॉट ओनली डिजाइन फॉर ए बाइक, मोटर इज ए मोटर कैन बी यूज फॉर द इंडस्ट्री, और इसका बहुत सारी यूटिलिटी है। आप अगर पीएमडीसी मोटर या कोई और हाई टेक मोटर को यूज करते हैं तो आपका 100 वाट से आप 70 पे आ गए हैं। ये हाई एंड के मैग्नेट को पीएमडीसी में यूज करते हैं। तो आप अगर मजीद भी ड्रॉप करें तो जो इस वक्त स्टैंडर्ड मोटर्स चल रही हैं वो जो 100 वाट के अगेंस्ट एक सर्टन लोड को वो जॉब को कर रही हैं, तो आप 30 वाट पे करेंगे। तो इसी तरह से इन मोटरों को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे इन एयर कंडीशनिंग को बाकी पूरी फैक्ट्रीज में, तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है, छोटा सा काम तो है नहीं है। लिहाजा इसके लिए ये टेस्ट इक्विपमेंट बनाना ही बनाना है। और आपको तो खाली, जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर खाली बाइक को ये जो 70 सीसी और 125 तक का जो रेंज है, ये कोई 1 करोड़ 70 तो डेली रोड पे होती हैं, तो खाली इनको कन्वर्ट करने के लिए अगर 5000 रोज की हों तो 12 साल तो इनको लग जाएंगे, और बीच का बैकलॉग जो है ना मजीद जो एडिशन होगा, तो मतलब इस रियल जॉब छोटा सा काम तो नहीं है। और इसके लिए आप और अहम चीज ये है, अहम चीज जो आपने निशानदेही की ना, ये बिल्कुल सही है। और अहम चीज ये है कि इसको कैजुअली ना किया जाए, इसको सिस्टमेटिकली तरीके से किया जाए। जैसे आप तरीके से काम कर रहे हैं कि एक प्रोसेस है पूरा आपका डेवलपमेंट का, और वो चीज़ पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आती है। असल मुझे शिकायत है, या मुझे जो मसला है, या मुझे जो परेशानी है, वो ये है कि 2-4 चीज़ों को जोड़ के हर एक बनाना चाहता है, ना कि जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। आप इसको इस प्रोसेस से मतलब क्या, जैसे कि अगर आप फसल उगाना चाहते हैं तो आप एक तरीका है ना कि आप इस वक्त ये बीज लगाएंगे, इस वक्त ये करेंगे, इस वक्त पानी देंगे, इस वक्त खाद डालेंगे, इस वक्त कोई वो कीड़ों मारने की दवाएं डालेंगे। वो एक पूरा तरीका, एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप उम्मीद नहीं रख सकते कि आखिर में आपके पास फसल तैयार होगी। यही बात देखें, हाँ सॉरी आजमल साहब, देखें जो प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा है ना, जैसे हमने कोई 150 प्रोजेक्ट पीएचडी 12 टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज को ये थ्रू एफआईपी करवाए। हमने यही किया कि एक चीज को डेवलप कर दी, अपने तौर पे खुश नहीं होते कि हाँ हमने बना ली। हमने वो उन यूनिवर्सिटीज के 4 लोगों ग्रुप, जिसको एक पीएचडी हेड कर रहा है, और वो उसको टॉस दिया कि यार ये बन गई है हमारे हिसाब से, अब आप इसके अंदर देखो कि आपने क्या, इसकी इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है और कहाँ गलती हमने की है, ताकि जब हमने फील्ड में इंप्लीमेंट करें तो फिर कुछ चीज री इन्वेंट ना करनी पड़े। तो इस पैटर्न पे आज भी हम उसी पैटर्न पे लगे हैं, लेकिन अब जरा फास्ट ट्रैक में और विद जो उनकी फर्दर फंडिंग और चीजें चाहिए होंगी, पहले वो नहीं दे सकते थे, अब जरा वो भी साथ एडअप हो जाएंगी। और इसके लिए थोड़ा सा हमने वास्ट गया एरिया को, ताकि बहुत सारे लोग जो है ना और भी आ सकें। तो हम तो कम से कम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जब तक वो तसल्ली नहीं होती। और एक ही काम को हम कम से कम 6-7 लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज को देते हैं, एक यूनिवर्सिटी 2 लोगों को ये काम नहीं देते। उससे ये होता है कि जो रिजल्ट आता है ना, उसको एक किसी ने स्टैम्प किया होता है और अपने कमेंट्स साथ दिए होते हैं। वो हमारा एक ऐसा एसेट्स है कि जब आप किसी लेवल पे जाके बैठते हैं ना, तो किसी को बात करने की हिम्मत नहीं रहती है कि आपको कोई ऐसे ही फिंगर पॉइंट कर सके। ठीक है। अच्छा उमर, आपकी कुछ थॉट्स थी इसको, टूल को फर्दर डेवलप करने में, एनहांस करने में? क्या
अच्छा, उसके अलावा मेरा एक कंपैरिजन बैटरीज का भी है, वो भी उसको भी कर लें रिव्यू, या पहले आप ये बात करना चाहें? तो हमें वो पहले बात कर लें क्योंकि टाइम अब थोड़ा अच्छा, कम है, क्या बाकी ठीक है, ठीक है। हाँ, तो साथ साहब और हम अजमल भाई हम सब ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये टूल डेवलप तो किया, लेकिन जब हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है तो हमारा काम कुछ थोड़ा स्लो हो गया है। तो हम सोच रहे थे कि हम इस टूल को ओपन सोर्स कर दें ताकि हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि कोलैबोरेशन बढ़ जाएगी, तो उसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस टूल को समझने में और उसको इम्प्रूव करने में, वो हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो ये इट विल बी फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन, और इसमें ये है कि बस हम इसको इम्प्रूव करते रहें साथ साथ जितने लोग आते जाएँ उसके साथ। और उसके अलावा फिर ये भी होगा कि मुख्तलिफ मॉडल, अभी हमारे पास एक मोटर का एक मॉडल है और बैटरी का एक मॉडल है, तो दूसरे लोग अगर आएंगे तो हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मोटर्स का और बैटरीज के ऑप्शंस नए डाल सकते हैं। तो इस वक्त जो वेबिनार में हमारे साथ लोग हैं, आप में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहेगा, इसको टूल डेवलपमेंट टीम को उमर के साथ, ताकि वो मिल के इसको थोड़ा डेवलप किया जाए फर्दर? साथ में मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप इसको डेवलप करते हैं, कुछ जो हमारे एंड पे डेवलप हुआ चूंकि हमने अपने प्योरली अपने पर्पस के लिए किया है, और मैंने बात की है बिहाफ ऑफ ईडीबी और ये पीएस की इसके साथ एक थर्ड पार्टी की वैलिडेशन के लिए एक जगह पर किसी या तो किसी यूनिवर्सिटी के किसी एरिया में लगाएंगे ऐसा ये टूल्स, या कि ऐसी जगह पे लगाएंगे ताकि जो भी मोटर बाइक वाला क्लेम कर रहा है ना कि मैंने इतने वॉट की मोटर लगाई है, वो वहां से वो अपनी सर्टिफिकेशन उसके थ्रू करवाएगा। क्योंकि ये जो है ना मिसलीडिंग से बाज हो जाएगा, और ये शॉर्टली अगले 4-5 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ, और फिर आपका अगर टूल साथ आ जाता तो वो ये सेकंड वैलिडेशन हो जाएगी। तो ये तो मुमकिन नहीं कि यहाँ से कोई बंदा यूएस के लिए मोटर चीजें भेजे और वहां से चीजें आए, हालांकि हो सकता है मगर इट कॉस्ट लॉट। तो बजाय इसके कि ये हो ये टूल बन के यहाँ कोई सर्टन हमने बनाया चीज आप जो कर रहे हैं वो लगा यहाँ पर किसी जगह प्लेस, जैसे आपकी आपने अपना जो इंस्टीट्यूट बनाया है उसके अंदर लगा दी जाए और रिकमेंड किया जाए। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि पीएसक्यू या गवर्नमेंट जो ये प्राइवेट सेक्टर में ऐसे जाने देगी नहीं देने देगी, क्योंकि हमारा माहौल जो है ना या लोगों का ख्याल ये है कि वो पैसे लेके ऐसे कर देंगे। तो लिहाजा वो जो है ना एक ऐसी बॉडी जो जिसके ऊपर कंफर्म हो कि वो 2 नंबरी नहीं करेगी, लिहाजा हर एक की तरफ से ये हो कि आपने जो इसमें क्लेम कर रहे हैं उसकी वैलिडेशन ये 1 या 2 जगह जहां से आप कराएं, तो वो अपनी मोटर बैटरी को लाता है, आपकी वैलिडेशन वहां से हो, फिर वो यूज करे जहां भी यूज करना। तो इस प्रोसेस को मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 5-6 महीनों में इम्प्लीमेंट की तरफ करवाने की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उस पर सब साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं काम, कि उसको कैसे थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो टूल के हवाले से साथ मेरा क्वेश्चन उमर चैट में उन्होंने पूछा है कि आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए टू डेवलप दिस फर्दर। हाँ, तो हमारा इरादा ये था कि हम मे बी GitHub पे या कहाँ उस पर मॉडल पूरा डाल दें, और फिर उसके बाद मे बी आइडेंटिफाई कर लें कि हमें किस कौन से पॉइंट, एक जो बड़ा एरिया होती है वैलिडेशन का, कि रियल लाइफ डेटा के साथ इसको वैलिडेट कर सकें। और फिर उसके अलावा मोटर्स और बैटरी, डिफरेंट बैटरी पैक्स में अभी हमारे पास जो मॉडल में है वो लिथियम आयन फॉस्फेट है, तो अगर दूसरे भी केमिस्ट्रीज हैं उनको करना है टेस्ट तो उसको हम नया मॉडल बना सकते हैं। इसी तरह मोटर्स का भी। तो प्लान ये है कि मतलब इस टूल को ज़्यादा रोबास्ट कर सकें कि वो मुख्तलिफ लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। तो साथ साथ उमर इसको आई थिंक यू आल्सो नीड हेल्प टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, और कुछ राइट, वर्जन हाँ, वो लोग एग्जैक्टली, डाउनलोड यूज कर सकें। बिल्कुल। तो उसका तो दूसरा उसकी एस्पेक्ट ये है कि अभी हमने इसका फ्रंट एंड जो है वो यूनिटी में डेवलप किया हुआ है, तो कोई लोग यूनिटी के हैं एक्सपर्ट्स, तो वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या मैटलैब से मिलेंगे। और कोई अगर इसमें आप लोगों के ज़हन में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो या कैन ऐड सम वैल्यू टू दिस, लेट देम नो। साथ भाई इसमें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि फिर लोग जो है बाद में इंडिविजुअल रीच आउट कर लें
ممکن ہے اس میں جو ہے بس مختلف کمنٹس آ رہے ہیں چیٹ میں، لیکن وہ حضرات جو کہ اس میں موجود ہیں اس وقت یہاں پہ، نہ صرف وہ بلکہ آپ اور کو جانتے ہوں جو کہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں، تو آپ ان پہ پہنچائیے بات. انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے، اس کو جو ہے اور اس کے ماڈیولر رکھیں گے، ماڈیولر مختلف ڈیولپ کریں گے، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف اس کی جو ماڈیولس ہیں ان کو جو ہے مختلف لوگ مختلف گروپس کو ویریفائی بھی کریں، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن بھی کریں اس کی. تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں. اٹ کین گو اے لانگ وے in helping improve the design capability of Pakistan EV vehicle industry. عمر آپ اس میں ڈال دیں گے اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن، people that are interested can contact you. ضرور. Go from there. تو اس میں ای میل بھی دے دیں تاکہ جو ہے اس طرح کی چیزیں ای میل پہ زیادہ بہتر رہتی ہیں. عام طور پہ فون نمبر بھی دے دیں، واٹس ایپ بھی دے دیں، ای میل بھی دے دیں. صحیح. اور یہ سیریس ریکویسٹ ہے. دس از سیریس سے مطلب کہ یہ ایسی تفریح تباہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہے کچھ. تو اس لیے اس کو اس طرح کنسیڈر کریں کہ somebody who is seriously interested in working. ایکیڈمک سائڈ کے لوگ ہوں چاہے انڈسٹری کے سائڈ کے لوگ ہوں، دونوں طرف کے لوگ کام کر سکتے ہیں اس میں. معذرت کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، میں نے قطع کلامی معاف کہہ دیا. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا آلموسٹ ہمارا انوائرمنٹ بھی سیم ہے، اور سم ہاؤ آپ سمجھیں تو بیک گراؤنڈ اور اکنامیکل ماڈل بھی سم ہاؤ کسی لیول پہ سیم ہوتا ہے. جو کمیونٹی بائک یوز کرتی ہے، انڈیا کی بھی وہی فائنینشیل سچویشن ہے جو ہماری ہے. کیا انڈیا میں الیکٹرک بائک پہ کام نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو وہ کون سا ماڈل یوز کر رہے ہیں؟ ان کی بیٹریز کے کیا سٹینڈرڈز ہیں؟ کیا اس کی پروجیکشن ہم یہاں پہ، کیونکہ ویل ری انوینٹ تو نہیں کیا جا سکتا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایگزسٹنگ ماڈلس کو یوز کر کے اگر ہم اس کی اپنے سراؤنڈنگس یا اپنے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکیں. تو جو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا از اے گڈ ایگزامپل. اس کے بعد چائنا بھی ہے. چائنا میں تو خیر بہت ہائی لیول پہ وہ یہ کام کریں اس کا. تو یہ جو ہمارے نیبرنگ ریجنز ہیں، تو ان سے ان کے جو سولوشنز ہیں، کیا ان کی پروجیکشن پاسبل نہیں ہے کہ ہم انسٹیڈ کہ ہم لوگ ریسرچ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اور اس میں فردر آپ کی اپنی ہر انسان کی ایک اپنا ریسرچ انٹرسٹ ہے. بٹ میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھتی ہوں، اگر میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، میں دیکھوں کہ سولوشنز آلریڈی موجود ہیں. مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے انہیں اپنے انوائرمنٹ، اپنے سینیریو کے اکارڈنگ انہیں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. یعنی پزلس کو آپ نے کیسے وہ ڈفرینٹ پیسز کو آپ نے ایک پزل کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی آپ لوگوں نے اس سائڈ پہ بھی کام کیا ہو تو. سعد بھائی میں آپ کے جواب دیں گے، میں تو جواب دوں گا. یہ بہت اہم سوال ہے، بہت سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. یہ جی ارجن بھائی گو اہیڈ. یہ جو آپ نے بات اٹھائی نا ہندوستان سے کمپیئر کرنے کی، میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان سے مقابلہ کرنا پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے ٹیکنیکل معاملات میں. اس لیے کیونکہ ان کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ فرق ہے ہماری ٹریجیکٹری سے. تو وہ ہاں کسی سے سیکھنے کا اگر آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں، لیکن نہ کہ سیکھنے کا تو بات یہ نا کہ علم کا دریا بہہ رہا ہے. اگر آپ ویب پہ چلے جائیں تو ویب کیا ہے؟ وہ علم کا دریا ہے. پہلے آپ دکان میں جاتے، لائبریری میں جاتے تھے آپ، پہلے ایک زمانے میں وہاں سے کتابیں ملتی تھیں. اب آپ کو جو ہے اکثر و بیشتر معلومات آپ کو ویب کے ذریعے بھی مل جاتی ہیں. کتب خانے کی اپنی اہمیت ہے، ختم نہیں ہوئی کر چکے. لیکن اس پانی کو جو دریا میں بہہ رہا ہے، آپ اپنے مقصد کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے نا. تو اگر آپ اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ علم کا دریا بہہ رہا ہے، نالج بہہ رہی ہے، تو چاہے وہ ہندوستان سے آ رہی ہو، چاہے وہ امریکہ سے، جاپان سے، ٹمبکٹو سے، کہیں سے بھی آ رہی ہو، آپ اس کو استعمال کر لیں. اس میں تو قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ملک کے لوگوں کے معاشی مواقع کم ہو جائیں اس وجہ سے. مجھے جو خطرہ سب سے بڑا نظر آتا ہے نا، اب ہندوستان اور چین کی بات ہوتی ہے، وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی اپنی معیشت بیٹھ جائے گی، آپ کے پاس لوگ کام نہیں کریں گے، بنی بنائی چیز ہندوستان سے آ گئی، بنی بنائی چیز چین سے آ گئی، اور آپ اس کو بیٹھ کے جو ہے صرف ٹریڈنگ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ نکلے جو معاشی مسائل آپ کے پاس ملک میں ہیں، اس سے آپ پھر نکل نہیں پائیں گے. اس دلدل میں آپ اور دھنستے چلے جائیں گے. یہ موقع ہے، یہ ذریعہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں لوگ جو پیسے خرچ کرتے ہیں، ایک تو مکان بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، تعمیراتی بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے. دوسرا گاڑی کا
ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ी से मतलब कि सवारी कह लीजिए उसको, तो वो पैसा हम अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल कर सकें उसकी अहमियत है। मैं डिफेंस को इसमें बीच में नहीं ला रहा, वो सियासी भी हो जाएगी बहस, लेकिन डिफेंस भी एक बहुत बड़ा खर्चा है जिसको कि हमें सोचना चाहिए कि मुल्क के माशी मफादात में वो कैसे काम करे। तो बस उसका खदशा बस ये है कि ये ना हो कि हम जो है अपने माशी मौक़े खो दें, अपने टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज खो दें। मैं ये नहीं कह रही, देखिए मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक चीज ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी हुई है, उस पे काम हो चुका है, हम और हमें पता है कि उनकी एनवायरनमेंट, मैं माशी हालात की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी की जॉब लेने की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वो लोग अपनी पेस में काम कर रहे हैं। हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल जो रिसर्च जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक में कितनी उसकी होनी चाहिए, कैपेसिटी क्या है, बैटरी की क्या कैपेसिटी है, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ये ऑलरेडी रिसर्च इंडिया कर चुका है। तो मैं वो रिसर्च में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करें, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। नॉलेज तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, वही बात, इल्म का दरिया बह रहा है, कम से कम वो दरिया से कुछ लें भी तो सही ना। मैं ये कह रही हूँ वो दरिया से ले लें आप कुछ पानी, और उसको अपने पानी में डाल के जमजम अपने घर में बना लेना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमें थोड़ा सा अपने ना पर्सपेक्टिव को वाइड करना है। जैसे आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो रिसर्च पेपर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन, वो यूके का भी हो सकता है, वो कनाडा का भी हो सकता है, वो कहीं का भी हो सकता है, बट हमें रिसर्च को भी अपनी वाइडन करना है। हमें सिर्फ यूएस बेस्ड नहीं रहना है, हमें सिर्फ किसी एरिया रीजन, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, वट एवर दे आर डूइंग, मैं सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का वेदर सेम है, पाकिस्तान और इंडिया की कम्युनिटी का माइंडसेट सेम है। ठीक है वो टेक्निकली बहुत आगे जा चुके हैं, तो हमने भी तो जाना ही है ना, कहीं से तो उन्होंने शुरू किए। मैं ये चाहती हूँ इंडिया ने अगर नॉलेज उठाया यूएसए से, यूके से, तो हम अभी चल रहे हैं, सफर पे चल रहे हैं, तो मैं री इन्वेंट क्यों करूं? मुझे पता है एक बंदा, ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना डिस्कशन में, ये क्वेश्चन सारे आई एम 100% श्योर कि ये ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं कहीं पे हमारे इर्द गिर्द, हमारे हमसायों में। मैं इन क्वेश्चंस के जवाब वहां से उठाऊं और मैं फिर डायरेक्ट सोल्यूशन पे बात करूं। मैं अपनी एनर्जी क्वेश्चन उस चीज की फर्दर एक री इन्वेंट नहीं करूंगी। मैं इंडस्ट्री में एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जब आप सोचेंगे ना, आप देखें फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोडक्ट है, कोई भी ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, एक कंट्री काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। मेरे लोगों की, मैं इंडिया को बुला के यहाँ पे जॉब नहीं दे रही ना, मैं उन्हें कह रही हूँ कि वो बना के मैन्युफैक्चर करके मुझे दें, मेरे लोकल लोग मैन्युफैक्चर करें, मेरे लोकल लोग सब काम करें। लेकिन अगर वो नॉलेज में उनको बहुत टाइम लगेगा। ये एग्जैक्टली हम वो बात करेंगे कि माँ बाप को तो ज्यादा पता होता है नॉलेज का, जब वो बच्चे को समझाने लगते हैं कि बेटा ये रास्ते पे ना जाना, ये गलत है, हम इससे गुजर के आ गए हैं, इस रास्ते पे जाओ, ये रास्ता ठीक है, और बच्चा के नहीं मैंने अपनी जिंदगी में खुद करना है, आपने जो करना था वो कर लिया। तो ये बिहेवियर हमें ओवरऑल अपना चेंज करना पड़ेगा। इंडिया हमारा दोस्त है, दुश्मन है? फॉर मी इट्स जस्ट रिसर्च, ये एक रिसर्च है, मैं उनका नॉलेज लूं, उन्होंने काम कर लिया, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्यादा एफर्ट कर दी, अब हम क्योंकि आपसे थोड़े से हमारे रिसोर्सेज कम है, आपके नॉलेज को यूज करके हम आगे जा रहे हैं, रेफरेंस दे दें, कुछ कर दें, बट वो एनर्जी नहीं दोबारा यूज करें ना, उसको एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक इससे कोई डिसएग्री करेगा कि हमें अगर कुछ वहां से सीखने को मिल रहा है या वहां से हम ले सकते हैं तो ना लें। आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल डिसएग्री विद दैट। आई थिंक इट्स ओपन, राइट? अब तो ये कि चीजें, इंफॉर्मेशन इज अ कमोडिटी, वो तो हर जगह अवेलेबल है। टर्निंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज और उस नॉलेज को फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी एनवायरनमेंट में, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। So that's the path we are on, that's the focus we have. आपकी बात से एटलीस्ट मैं तो डिसएग्री नहीं करता कि अगर वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो वहां से हमें नहीं करनी चाहिए। That's not the way we are तो looking. इसमें जैसे आपका ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आप लोग 20 लोग हैं या आप 15 लोग हैं, जो भी आपका अपने एनवायरनमेंट, अपने ग्रुप डिजाइन किया हुआ है, उसमें आप असाइन कर दें लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें कहें कि वो अपने नेबरिंग कंट्री से वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। यानी मैं कहती हूँ जब ये 1 आवर का आपका सेशन हो रहा है, तो इसमें वो लोग जिन्होंने लास्ट वीक में पूरी एक रिसर्च की है, कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स भी तो होंगे जो डेफिनेटली इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उन लोगों की भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स के आप असाइन कर दें कि ये आप डेफिनेटली, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन है, आप उन्हें इंटर्नशिप दे सकते हैं, कुछ भी। और इंटर्नशिप क्या होगी कि वो रिसर्च करें, इस चीज पे रिसर्च करें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या है। वीक में जब आप ये 1 आवर यूज करते हैं ना, इस 1 आवर में लोग अपना नॉलेज शेयर करें कि मैंने इस वीक में पूरे में ये रिसर्च की है और ये उसका रिजल्ट है, ये मैंने आउटपुट लेके आया हूँ।
ہر بندہ اپنی جو انپٹ ہے وہاں پہ وہ دے جو پورے ویک کا نالج گین کیا ہوا ہے. جی تو یہی مقصد تو یہی ہے کہ اس میں نالج جو ہے وہ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہی ہم کر رہے ہیں, لیکن with some focus on specific topics. جیسے آج کا ٹاپک تھا کہ ہمارا رینج اور پرفارمنس کی کیا کس طرح سے اسٹیمیٹ کیا جائے, کس طرح سے سمجھا جائے اس کو. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کس آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے؟ سر میں بیسیکلی میں بیانہ بیسڈ ہوں, میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں اور میں بلاک چین ٹیکنالوجی میں کام کر رہی ہوں. میں ان کے ساتھ جعفری صاحب کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں. میں نے نیب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, ہم لوگ کرپٹو ریگولیشنز پہ. تو میں ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کرتی رہی ہوں. میں نے 3 سال پہلے کووڈ سے پہلے ہمارا پروجیکٹ تھا, الیکٹرک وہیکل پہ کام نہیں تھا, وہ ہم آپ سمجھ لیں کمپیٹیٹر تھے. میں کام کر رہی تھی ہائیڈروجن وہیکل پہ, کیونکہ ہائیڈروجن از آلسو سورس آف انرجی, اور ہائیڈروجن کا یہ بینیفٹ تھا کہ یہ اسٹور کی جا سکتی ہے. دس از دا اونلی سورس آف انرجی دیٹ کین بی اسٹور. تو ہم لوگ ہائیڈروجن فیول سیلس پہ کام کر رہے تھے, اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا جب ہم الیکٹرک وہیکل سے کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں کیا چیلنجز آتے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, کیونکہ میں نے کہا نا ریجن وائز ہر پرابلم ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ یورپین یا یو ایس یا باقی ریجن میں دیکھوں, میں جتنے لوگوں سے میری میٹنگ ہوئی ہے ان سب کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ پروڈکشن ان کا جو سورس آف فیولنگ ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے ان کا. پروڈکشن تو ہو ہی رہی ہے نا ایک سائڈ پہ, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کی ڈیزائن انفراسٹرکچر وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں بیٹری سے باہر آنا ہے, ہمیں جانا ہے کہ ہم اس کو فیول کے ریسورسز کیسے جنریٹ کریں. تو ہمارا اس ٹائم پہ یہ تھا کہ جیسے گریڈ اسٹیشنز ہیں, جب وہ اوور لوڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, تو بہت زیادہ انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تھا کہ اس انرجی کو اسٹور کر دیا جائے ان دا فارم آف ہائیڈروجن, اور اس کو بعد میں ٹرانسفارم کر دیا جائے, چاہے آپ الیکٹرک وہیکل میں یوز کر رہے ہیں یا کسی میں بھی, وہ فیول اسٹیشن پہ, موبائل فیول اسٹیشن پہ ان کو یوز کیا جائے. تو ڈیزائن اور انفراسٹرکچر یہ تھا ہمارا, اور میں ہمیشہ اس چیز پہ دیکھ رہی ہوں. میں پرسنلی ہر بندہ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ جو کوئک سولوشنز ہوں, جو آپ کو بہت زیادہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوگی, اور جس سے آپ اگر آلریڈی پڑی ہوئی ہیں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو ہمیں اس کو کمبائن کر کے, بیکاز اٹس اے یونیورسل پرابلم. غربت بھی یونیورسل پرابلم ہے, یہ ٹیکنالوجی بھی یونیورسل اسے کہنا چیلنج بھی ہے. یہ کسی میرا یورپین امریکن پاکستانی انڈینس کسی کا چیلنج, یہ اوور آل ایک چیلنج ہے, اور ہر انسان کو بینیفٹ اٹھانا چاہیے. پولیٹیکلی ہم لوگ ایک ڈفرنٹ اسکیل پہ ہیں. نارملی جو ہے نا ایز اے ہیومن بینگ ہم سب ایک یہی چاہتے ہیں کہ سب کو بیسٹ پاسبل اپرچونیٹیز ملیں. جی جی تو بالکل میرا یہ تھا. ہاں جی نہیں ہے جی ڈاکٹر صاحب, میں بس یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کی پاکستان میں یونیورسٹیز میں لنکیجز ہیں تو if you can maybe help convince some of the students there to join this forum, تاکہ جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس جو کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں مل کے کریں. So that's one request. The other request is کہ اگر آپ نے already کچھ کام ایسا کیا ہوا ہے جس میں کوئی quick solutions آپ نے identify کیے, whether they are in Europe or someplace else and you were able to implement those in Pakistan, I think an example like that will be very, very helpful for this group. اچھا, میں آپ کو اس میں ایک ہیلپ کر سکتی ہوں. UIT جو پاکستان میں لاہور میں, ان کے جو ڈین ہیں وہ ان کے ساتھ آپ سمجھ لیں وہ ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو ایک دو ان سے جا کے مل لیں. UIT میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ انجینئرنگ اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. انجینئرنگ کے موسٹلی اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں. وہ لوگ آئی بلیو کہ وہ الیکٹرک وہیکل سائڈ پہ ہوں گے. وہ آپ ان سے میٹنگ کر کے آپ اپنا پروجیکٹ وہاں پہ پریزنٹ کر دیں, اور ان میں جو بھی اسٹوڈنٹس انٹرسٹیڈ ہوں آپ ان کو اپنے فورم پہ لے آئیں. دوسرا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ تو ہم نے خاصا کیا ہوا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ. The challenge is کہ I don't think people really understand that this is the future and this is what people have to learn and develop capability in Pakistan. تو وہ جو ہے that is something I think we are still lacking. تو اس میں یہ اس میں آپ کو کیا چاہیے, یعنی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, یعنی آپ کا کوئی ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی پلان پروجیکٹ کا پلان بنایا ہوگا نا, تو اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کا آپ کو کمیونٹی چاہیے. میرا سمپل ریکویسٹ یہی تھی کہ فرام واٹ یو نو اباؤٹ دس فورم, اگر آپ بات کر سکیں یونیورسٹیز میں جہاں پہ آپ کی لنکیج ہے, تو وہاں سے لوگ اگر اس کو فورم کو جوائن کر لیں, وی میٹ ایوری سیٹرڈے فار 1 hour.
تو if nothing else we'll unlearn from them کہ وہ بھی کیا سوچ رہے ہیں, کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں electric vehicles کو, اور ان کی کیا thoughts ہیں electric vehicles کے بارے میں. تو that will be helpful for us as well. تو اگر آپ وہ مجھے آپ اپنی ڈیٹیل بھیج دیں, اگر آپ مجھے آپ جو پروجیکٹ کر رہی ہیں یا کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے, اگر مجھے اس کی ڈیٹیل بھیج دیں گی تو میں آگے فارورڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ اور مجھے اپنی پھر وہ کانٹیکٹ انفارمیشن شیئر کر لیجیے گا. جی میں آپ کو یہ کون سا گروپ ہے آپ لوگوں کا, 8 PM والا ہے نا یہ, میں ابھی یہیں پہ آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر ہی لکھ دیتی ہوں گروپ میں, چیٹ میں. جہاں سے آپ میرا نمبر لے اچھا لیجیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتایا ہمارے آگے سر آپ نے آگے, پوچھا آپ کہ ہی 8 کو مس PM کر دیجیے. والا ہے. جی سر, سر آپ کو مجھے پتہ ہے فکر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو میرے کام سے کریے میرا. جی سر, جی بتائیے. بات کر رہے تھے نا تو مجھے بڑی رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرے کام سے ہمارا صاحب آپ کی آواز جو ہے مجھے اپنا جو بلاک چین والی خاتون ہے اس کا مجھے شام کو میسج آیا تھا کہ آپ پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو میں نے میسج کیا تھا, بلاک چین والی جو ہے نا خاتون جوشا, اس سے ذرا اس سے آپ بات کر لیے گا پھر ذرا آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جوشوا میں تو ایک جوشوا کو تو جانتی ہوں لیکن وہ US بیسڈ ہے. چلیں جی, ہم لوگ I think we should will wrap this session up. جی سوری, آپ میں عمار صاحب کے ساتھ بعد میں بات کر لوں گی. جی میں نے اپنا نمبر بھیج دیا, آپ کائنڈلی اپنی اپنی پروجیکٹ کے جو ڈیٹیل ہے یا آپ کی آرگنائزیشن کی ڈیٹیل ہے وہ شیئر کر لیجیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی, ہمارا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز بہت ڈسٹورٹیڈ ہے. تو اچھا, اور کسی کے کوئی کامنٹس ہوں, کوئی کوشچنس ہوں before we wrap up for today? اگر نہیں ہے تو I think we're good for today. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کا جو ہمارا سیشن ہے we'll focus on motors and controls, and I don't know if Fida Saab is still with us. I talked with Fida Saab and he was very generous in offering to prepare some material, and we'll go through motors and controls, discussion on motors and controls next week inshallah. تو ٹھیک ہے جی, پھر انشاءاللہ اگلے ویک پھر بات ہوتی ہے 8 بجے سیٹرڈے. السلام علیکم. اللہ حافظ.